इन्ना तैना कल कौसर फसल ले रब्बिक वनहर. Evening. On behalf of CFA Society Pakistan, I'm pleased to welcome you all here. We are really honored to have representation from State Bank, Mr. Sohail, who is here, and Mr. Ashar is here. Today, since the topic of the seminar is future of banking business model, and I'm sure, like me, you are expecting to hear what is going to be the landscape, what is going to be the future of banking in Pakistan. So we have been seeing these several initiatives, host of initiative on one side from SPP every day, not every day, but on a very regular frequency, we are seeing very good initiatives from State Bank of Pakistan. And at one side, we are seeing a very huge conventional banking space as well. Now, there is progress on the innovative finance side as well. Now, how it is going to evolve in the near future, how the current banking is going to evolve, how the current banks, which they are, so there are 5, 6 big commercial banks. There is this big Islamic banking space, but that has been hugely more conventional and brick and mortar model. So State Bank had recently issued digital bank license as well. Progress has to be there in a very short period of while. So we have two experts, one from State Bank of Pakistan, Mr. Sohail Jawad, heads digital initiatives. I'll talk more about his profile in a bit. And we have Ashir, who is a technical expert, who is an enabler of digital banking, I would say. So we begin with so the flow of the session is that we will invite first Ashar, who will share his thoughts, who will share how this model has really worked, the online digital banking model that has revolved in the other parts of the region, other parts of the world. Has it really worked, and how it has really worked? After that, we will have Sohail Saab, who will talk about how SBP sees the landscape, how SBP has enabled this overall environment, and what is the outlook of the overall banking sector. So with that, let us move to the first part of the presentation. After the presentations, we can have a moderated Q&A, and you will also be able to ask the questions with the speakers. So let me introduce our first guest, Ashar. Ashar Nazim is the founder and CEO of Aeon Digital, and a fintech entrepreneur, investor, and board advisor. Prior to founding Aeon, Nazim was partner and global head of Islamic banking practice at EY, leading firms advisory practice to build out 30 major Islamic financial institutions across emerging markets. Having studied with a Bachelor of Science from Harrison School of Business, Southeast Missouri State University, USA in 1994, Nazim qualified as CPA at the American Institute of Certified Public Accountants. With taking this opportunity, I'll also introduce Sohail Saab as well. Sohail Saab is the Executive Director of Digital Financial Services Group of State Bank of Pakistan. Mr. Sohail Jawad is responsible for creating development strategies and regulatory policies around the technology innovation in digital financial services. During his 20 years, more than 20 years at SPP, Mr. Jawad has held various roles in technology and automation, policy regulation, supervision, treasury, and market development. We heard the initiatives about starting from National Payment Strategy, RAST, Russian Digital Account. Sohail Saab has been the lead in implementation and introduction of these initiatives from State Bank, and I think a very relevant speaker to talk about it. And Mr. Jawad holds a master's degree in applied sciences degree from University of Waterloo, Canada, a master of science degree in statistics from University of Karachi, and MBA from Institute of Business Administration, Karachi. Now with that, we move to the session from the individual speakers. So I'll first invite Mr. Ashar Nazim to come and share the presentation and his remarks at this evening. Thank you. Right in front of this mic. Okay, good. So what we want to talk about is how the banking business models around the world are evolving, and why is it that we should be interested? Two reasons. One, the banking business, जो कि बड़ा एक sticky business होता था, इस वक्त roughly, and I can talk more in terms of GCC and then globally as well क्या हो रहा है. तो roughly 50% of the retail banking business that was considered to be sticky in the past is now no longer
captive to those incumbent banks. And that is huge, right? And as analysts, you can imagine if there is a movement of 50% of deposits or other facilities from one bank to another, what is the kind of impact it can have on the bank's ROEs as well as on valuation. So number one. And number two is, जो हमारे पास evidence है that is saying roughly around 30% plus of customers are right now very keen to experiment with digital first banks, and a big segment, roughly around 20% plus, are now willing to move and make digital first bank their primary bank. Right? And that's a huge shift. That's a huge shift. Right? So number one, the business that was supposed to be sticky, जिसके basis पर banks की valuation and ROE चल रही थी, that is no longer, that assumption no longer holds true. Number two, जब आप देखते हैं digital banks को, so digital banks की valuations are going through the roof. Right? So if you just Google digital bank valuation, and you will see कि इसने 9 billion raise किया, उसने 500 billion raise किया, उसने इतना raise किया, at billions of dollars of valuation, and these guys are becoming unicorns in different markets for various reasons very quickly. So the question becomes how? What is driving that valuation? Right? Is there a path to profitability? Is a big question, right? I mean, जो कि आम तौर पर digital banks में होता है. And the answer is not. Right? And the answer मैं absolutely not बोलने वाला था, लेकिन then I thought and then I said not. Right? So when there is no path to profitability, then how is it that these banks are commanding a premium over a lot more profitable banks? Right? एक क्वेश्चन आता है then. और उसका simple answer ये is all about data play. And the future of not just banking but a lot of business is going to be, they will be data first businesses. और Uber चाहे perpetually loss में चल रहा हो लेकिन उसकी valuation ज़बरदस्त होगी, Netflix जितना भी loss में चल रहा हो उसकी valuation ज़बरदस्त होगी. Why? Because the market is now trying to value कि यार कितना customer base आपके पास है, उस customer base का quality data कितना आपके पास है और आपकी ability क्या है उस data को mine करने की और उसको समझने की. और for example Netflix, right? There's no shortage of entertainment channels या जो भी अपना वो है आपके portals हैं. But why is it Netflix so big? बहुत ही basic level पर जाके उन्होंने आपकी behavioral habits को analyze किया है, and using some exponential technologies they are able to suggest, to make it sticky. ताकि जब आप वहाँ पर हैं, you spend more time, a lot more time than their competition, and that is what the market is valuing them at. Right? So two reasons. One, the banking business franchise is becoming more volatile, it's no longer sticky. Number two, the premium जो कि सिर्फ ROE से आता था या distribution network से आता था, वो अब change हो रहा है to quality of customer and quality of data जो आपके पास underlying है. And therefore, this session, in the next 15 or 20 minutes, what I would like to do is just touch on, because that's a big subject. Okay, digital banks exactly हैं क्या, how to break this myth of what digital banks are, right? What constitute them, and then what is happening in the international market. And I'll share some examples with you. जिसमें आप देखेंगे हैरानी ये होगी आपको कि वो complicated नहीं है उसका explanation. उसका explanation actually जो है बहुत ही simple, and that is what the challenge is. To understand कि यार ये सिर्फ 3 या 4 features के साथ you are telling me you are a unicorn? I mean, are you serious? मतलब कैसे? Right? And I'll give you several examples, and I'll leave this thought with you, and this can be a start of a journey, right? I mean, about how we see the digital banking play. So 4 things. What is the defining attributes of challenger digital banks? What is the problem they're solving? Go-to-market strategies, and some examples of market propositions. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि देखिए technology-enabled businesses have been there forever. So what has changed really? What defines digital and fintech space, right? 3 things. 1, a modern tech stack, right? Technology stack based on, and I'll use some buzzwords, microservices, containers, Dockers, Kubernetes, cloud-based technologies and API economy जिसकी बात करते हैं, उस basis पर a modern tech stack. And any company that's been there in business for last 10 years, 20 years is working on legacy. Last 3 years में बहुत ज़बरदस्त change आया है, हर 3 साल में change आ रहा है. So a modern tech stack जो enable करता है एक ज़बरदस्त किस्म की scalability for these banks. Number 2 is mobile devices. How do I structure, provide and consume
financial services via mobile. And that, if you think about it, that automatically has an implication on the cost of intermediation. वो आपका कम होता है, scalability, branch network के बजाय आप कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत different track है और scalability, right? तो दूसरा ये है, तीसरा है ecosystem play. What does ecosystem play mean? Ecosystem का मतलब ये है कि आज बैंक कहता है product भी मेरा है, customer भी मेरा है, infrastructure भी मेरा है. कल की दुनिया में you'll have to choose between the three, right? And then 30%, and it's not very far away. 30% of your portfolio will be proprietary, 70% where you'll be deeply connected, right? Not within the industry. For example, अगर बैंक है तो वो pension fund किसी और का ऑफर कर रहा है, तकाफुल या इंश्योरेंस किसी और के ऑफर कर रहा है, but also outside the industry. Booking.com के थ्रू आपकी एयरफेयर, तो ये deep integrations जो possible हुई हैं because of what we call, it has an implication on the cost of intermediation. वो आपका कम होता है, scalability, branch network के बजाय आप कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत different track है और scalability, right? तो दूसरा ये है, और तीसरा है ecosystem play. What does ecosystem play mean? Ecosystem का मतलब ये है कि आज बैंक कहता है product भी मेरा है, customer भी मेरा है, infrastructure भी मेरा है. कल की दुनिया में you'll have to choose between the three, right? And then 30%, and it's not very far away. 30% of your portfolio will be proprietary, 70% where you'll be deeply connected, right? Not within the industry. For example, अगर बैंक है तो वो pension fund किसी और का ऑफर कर रहा है, तकाफुल या इंश्योरेंस किसी और के ऑफर कर रहा है, but also outside the industry. Booking.com के थ्रू आपकी एयरफेयर, तो ये deep integrations जो possible हुई हैं because of what we call API economy in a very seamless way, that is what is giving rise to what we call the ecosystem play, जिसमें 30% ownership. तो अब डिबेट किस बात की है? Who owns the customer? अच्छा ये सुनिए, this is important. Who owns the customer? इसके ऊपर इस वक्त फाइट है. Versus who owns right to customer data? Versus who owns right to use that data? So this is a thought I will leave with you. एक बहुत बड़ी बहस है. और अगर आप Google versus Dropbox versus Facebook का मॉडल देखें तो ये तीनों बड़े अलग मॉडल हैं when it comes to the data play, right? So ecosystem play की जब बात करें तो हम कह रहे हैं modern tech stack, हम कह रहे हैं mobile devices, और हम कह रहे हैं ecosystem play. अच्छा, उसके बाद जो है जो चीज़ आती है उस पर मैं कहूँगा कि and I'll just skim through and I'll leave a lot of themes with you to ponder on. मैं कहूँगा देखिए buzzwords बहुत सारे, but what is absolutely changing the game in the banking industry? Regulations से मैं start करता हूँ. And I will talk about, ये तीन, of course, licensing, which is a new framework is coming up that will allow digital banks, and it's a very good debate what constitute a bank. लेकिन दो बहुत important चीजें हैं. One is eKYC. What does eKYC imply? eKYC का मतलब ये implications ही हैं कि जी डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो सकती है कस्टमर की, डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन हो सकता है विदाउट यू हैविंग अ ब्रांच ऑल ओवर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और ऑल ओवर द कंट्री. गेम चेंजिंग. मैंने HBL में आज अकाउंट खुलवाना था फॉर बायोमेट्रिक्स. आई हैड टू गो टू द ब्रांच और उन्होंने कहा कि आप रनिंग फाइनेंस के लिए या अकाउंट ओपनिंग के लिए, और मैंने कहा कि वाई बायोमेट्रिक शुड बी वन. नहीं कि वो एक एक्सेप्ट नहीं करता है दूसरे का, right? So you'll have to have two different, तो आप बताएं कौन सा. I'm just thinking, and then after that they gave me a paper as well print out कि ये आप रख लें, ये हम दोबारा प्रिंट नहीं कर सकेंगे, right? So yes, the journey has started. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैक्टर वगैरह के मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट हैं, eKYC and digital identity is a massive game, is a game changer, right? और उसकी अभी सिर्फ इब्तिदा है, and that is huge implication. The quality of customer onboarding, जो होती है, that has a huge implication on the quality of the digital banking proposition. और दूसरा है open banking. In very simple terms, open banking इतना seismic shift लेकर आएगा कि आप बैंकिंग को समझ नहीं पाएंगे. आज की बैंकिंग और कल की बैंकिंग में इतना फर्क होगा. What is open banking? In very simple terms, open banking का मतलब है कि regulators are now demanding banks to open up the data tap, यानी उनके पास मेरा और आपका जो data है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो regulators are saying, hey, you know what, you're too slow in innovating. You need to open up the data tap. You need to let the data flow out in a structured, consented manner, of course, to all these new third parties that I'm going to license, and that will come up with innovations to use that data, right? तो उस data के basis पे क्या होगा? आज आपकी जनाब credit assessment होती है जनाब कि आपकी salary का profile देखकर उस वक्त real time में
10x मोर डेटा के साथ आपकी जनाब क्रेडिट असेसमेंट हो रही होगी, राइट? क्योंकि क्या है जनाब, मैं सिर्फ सैलरी देख रहा हूँ तो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन मैं अगर आपका लाइफस्टाइल पैटर्न देखूँ, मैं अगर आपकी जनाब के हॉलीडे अपना स्पेंडिंग देखूँ, ये सारा रियल टाइम में ये ट्रांजैक्शन डेटा एंड अकाउंट्स डेटा इन एन एग्रीगेटेड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे अब पॉसिबल है, और उसकी वजह से द क्रेडिट असेसमेंट एज वन यूज केस is going to be massively different. So there are new players coming up who are saying, you know what, I understand Mr. X's credit profile much better than the incumbent banks, right? And I will be able to do credit in real time or much faster, etc., etc. And there are numerous business models coming up. So massive change. और ये बहुत ही एक simple definition open banking की, और it's a massive play. मैं आपको बल्कि example देता हूँ. UK में open banking 2016-17 में start हुआ, और तकरीबन जो है वो उनके पास मतलब पिछले 4 साल में तकरीबन कितने आपके ख्याल से कितने लाइसेंस एंटिटीज़ हैं who are coming out with कि जी ओपन बैंकिंग को मुझे लेवरेज करना है विद डिफरेंट यूज केसेस, कि क्रेडिट कैसे दूंगा, डिपॉजिट कैसे मोबिलाइज करूंगा, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करूंगा. हाउ मेनी इन द लास्ट 4 years? 350 प्लस, राइट? 350 नए लाइसेंसेस दिए गए हैं टू दीज लाइट टच, आई विल कॉल फिनटेक्स और डिजिटल बैंक्स, right, who are now going to tap into cherry pick the banking business for the benefit of the consumer. पिछले 4 साल में आपके ख्याल से API calls गिराती है, यानी कि डेटा की रिक्वेस्ट जब भेजते हैं, it's called API call per day. तो 2018 में 3 साल पहले की बात जो डेटा है, 60 मिलियन API calls हुई, इनसे ऑटोमेटेड अंदाज में रिक्वेस्ट फॉर डेटा हुआ 60 मिलियन 2018. 2021 में आपका क्या ख्याल है कितनी हुई? टेक अ गेस. 150 मिलियन, 300 मिलियन, 6 बिलियन, 6 बिलियन request for data call, API call, and there are more. This represents 5% of user adoption right now in the UK market. Now try to imagine, जब हम data play और ये buzzword की बात करते हैं, the kind of seismic shift that's coming our way. Region में bahrain ने already introduce कर दिया है 2 साल पहले, सऊदी ने policy announce कर दी है, regulations will be out any time now, और कतर ने announce किया policy और regulations आ रहे हैं next year. UAE ने बिल्कुल announce नहीं किया, कुवैत ने announce नहीं किया, right? Malaysia is studying, right? I mean, so a number of regional banks, लेकिन Australia, UK, Brazil, मतलब massive, मतलब आप सिर्फ study करें कितना massive change आ रहा है. This is not funny, right? I mean, अगर career रखना चाहते हैं अगले 5 साल बाद, so you need to understand what this means. The other one is digital technology. There are many technologies, but 2 or 3 which are game changing is cloud computing. Cloud का मतलब क्या होता है? Cloud का मतलब ये होता है कि मुझे पूरा capex करने की जरूरत नहीं है, on a software as a service basis और platform as a service basis पे मैं वो technology ले सकता हूँ. Game changing in terms of allowing less barriers to entry, allowing new players to enter at a fraction of a cost on a pay as you grow basis. One. Second, मोबाइल टेक्नोलॉजी उसकी बात हो गई है कि सेल फोन डिवाइस स्पेशली, API इकोनॉमी की मैंने थोड़ा टच किया है, एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट? अगेन अ बिग बज़वर्ड, बट नाउ द यूज केसेस ऑफ AI and ML are being applied by smaller and mid-sized banks. Again, it's all links to the valuation of digital bank के are being used. अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने कुवैत फाइनेंस हाउस के साथ एक छोटा सा काम किया. हमने कहा कि आप हमें 10 साल का अपना क्रेडिट कार्ड का डेटा दीजिए और हम आपको बताएंगे कि अगले 3 महीने में आपका इन तमाम कस्टमर बेस में से कौन सा कस्टमर सेगमेंट यू आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग बेस्ड ऑन द 10-year बिहेवियरल पैटर्न. हर बैंक का लेगेसी नाइटमेयर है डेटा, there's an open secret, right? उसके बावजूद यूजिंग AI एल्गोरिथम जो हमने सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर बिल्ड किया, we were able to run, and with 83% accuracy we were able to identify that 3% of their customers से हमने कहा कि देख लीजिए 3 महीने में रिजल्ट देख लीजिएगा, definition of attrition देख लीजिएगा. So again it all goes back to these terminologies that we are used to, which is attrition क्या होता है जी, acquisition क्या होता है, cost क्या होता है, उसकी customer lifetime value क्या होती है, ये तमाम चीजें are getting impacted with these technologies and इसका use up आ गया है. And of course customer expectations, you hate going to branches, you want a different way of banking altogether. So some very powerful engines who are no longer कि जनाब के अमेरिका लंदन में हो रहा है, is here in our part of the world, it is happening. And who is using it? It's not just banks, but there are a number of non-FI corporates who are entering. उनका एक बड़ा एक different niche है versus startups जिनके बड़े different problems, and I'll touch on that.
मार्केट में बिग टाइम आ रहे हैं. सो इफ आई हैव टू समराइज अ स्मॉल मैसेज, मैं ये कहूँगा कि द लाइक्स ऑफ इंग्रोस ऑफ द वर्ल्ड एंड टेलकोस ऑफ द वर्ल्ड एंड FMCGs of the world are the banks of tomorrow. Right? This is a terminology called banking as a service. They are partnering with, banks. They are, in very crude terms, renting the infrastructure and the compliance and regulatory compliance frameworks. And they are saying that I'm leaving too much money on the table. पहले होता था कि जितना हर चीज़ बैंक के पास होती थी, फिर एफिनिटी मार्केटिंग वगैरह शुरू हुई. अब ये कह रहे हैं कि how can I insource a number of different aspects of the banking business, and that is happening big time. I think I've touched upon most of these points. So what are the 5 key? So cell phones, customer experience. Experience का क्या मतलब है? Right? No rocket science. Experience का मतलब ये है customer experience का कि इंतहाई elegant experience, right? I mean Google जब आप जाते हैं तो 50,000 चीज़ों की बजाय सिर्फ एक वो होता है और आप कहते हैं बड़ा clean चीज़ है, मुझे सिर्फ सर्च करना है. It does not distract me, for example, right? कभी-कभार आप बहुत सारे मोबाइल ऐप्स इस वक्त आप देखिए and they're a nightmare. Right? I mean, and even if they're not nightmare, they're just good, right? You've got to be exceptional. The best of the best are the ones who must बहुत ही elegant user interfaces and user experience अपना जो offer कर रहे हैं. Platform, a massively abused buzzword, right? But what does a platform mean? A platform का मतलब ये है कि technology जो underlying है, वो आपको allow करता है to talk to outside systems in a seamless manner. जो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, that leads to the ecosystem. An emotional brand, right? And as a result of this, digital banks के साथ customer की affinity ज़बरदस्त है. And जो इस वक्त data show कर रहा है, वो ये कर रहा है कि these customers are 8 times more profitable than customers of traditional banks, right? Some data points for you to think है, क्यों जो है ये valuation different हो सकती है. Buzzwords को break down करें, digital banks की भी बहुत सारी different definitions हैं, challenger bank और neo bank. Challenger bank में भी आप ये challenger bank होता है full fledged license के साथ जो बैंक आ रहे हैं, उनमें जनाब आप fintech banks उनको कहते हैं जो कि startup के तौर पर आ रहे हैं, बिल्कुल with no legacy, no nothing. और दूसरा होता है कि जो कि corporate backed entities आ रही हैं, उनके पास एक existing captive customer pool होता है, and they are entering in banking, right? And with a full banking license. Neo bank is not the same as challenger bank. Neo bank का मतलब ये होता है primarily front. ये partner कर रहे हैं, right? किसी ना किसी license institution के साथ, और वो license use करके कर रहे हैं. Example, anyone can think of in Pakistan. For example, Yap. Yap अभी जो announce हुआ है, Yap UAE में RAC bank के साथ मिलकर उनका license use करता है. आपको हैरानी होगी, PayPal कि अगर आप वो फाइन राइटिंग देखें तो वो उनके पीछे एक बैंक खड़ा हुआ है, राइट, एक्सेट्रा. सो मेनी ऑफ देम, या जो है वो सऊदी में भी ऑलरेडी साइन अप कर चुका है बैंकों को. व्हाट दे आर सेइंग इज, राइट, यू नो व्हाट, instead of getting into all these infrastructure and regulatory and compliance issues, I am very good in customer management, marketing, expectation, and that's what I'm going to specialize, and I'm going to split the fee with the bank. बैंकों के पास क्या क्वेश्चन है, या मैं कैनिबलाइज क्यों करूँ, right? But they're way past that question now. So they've accepted, this is here to come, it's here to stay, and therefore either partner up or lose it to your competition. So आज कुवैत में 2 digital banking licenses के लिए apply हो रहा है, and telcos and banks have partnered up, for example, right? And others, and then you'll see a lot of different versions of that. And there are many examples in each category. You'll have the presentation, and if you look at some of these who are massive successes, they are again the simplicity that they bring to really break this barrier is amazing, right? Regulations wise, 3 distinct categories हैं. एक में कुछ countries हैं जो कि dedicated regulatory framework लेकर आ रहे हैं, और दूसरे हैं जो कि उसी में अपने आप को embed कर रहे हैं. So for example in Saudi, while there is no separate regulatory regime, वो कहते हैं जी regulatory bank का license का जनाब आपका $500,000 paid up capital होना चाहिए. UAE भी ये कहता है, राइट? UAE में ऐसा लोग कह रहे हैं क्यों चाहिए यार मुझे $500 million, so $500 million क्यों कैपिटल चाहिए? I do not need to set up a branch network. Why? Bahrain ने कहा है कि if you are a bank and if you want to launch a brand within a bank, then $20 million. A very different approach, right? So when you see the regulatory framework in different markets, ये भी अपना काफी different है.
there are a number of criteria they go through, but very importantly, Pakistan में भी we are helping one or two. जो नए आ रहे हैं, अब एक सवाल जो मजीद ऐड हुआ है कि भी आपकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कितनी है, कितनी समझ है आपको, आपके बोर्ड में वो स्किल सेट मौजूद है कि नहीं है, राइट? तो उस बेसिस के ऊपर अगर हम आगे चलते हैं तो ओके, सो व्हाट आर द गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज दैट डिफरेंट बैंक्स आर परसुइंग, और उसमें 4-5 चीजें आई विल टच ऑन कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, कैसे डिफरेंट है, टारगेट सेगमेंट्स क्या है, यूजर एक्विजिशन कैसे है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो जब वैल्यू प्रोपोजिशन की बात होती है तो ओपन बैंकिंग एंड डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन आर गोइंग टू बी द फाउंडेशनल, आप समझिए कि जनाब, डिफरेंशिएटर बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल फर्स्ट बैंक्स, राइट? और उसके अंदर अगर आप देखें तो व्हाई डज इट मैटर, एंड दोज आर द फाइनल डिटेल्स हियर। ओपन बैंकिंग की वजह से मैं जनाब जो चीज़ें ऑलरेडी बिल्ड हुई हैं बैंकों के पास, उनकी APIs का मेरे पास एक्सेस है, आई डोंट हैव टू बिल्ड एवरीथिंग माई सेल्फ, I can connect and therefore reduce my time to market by 18 months. Again, go back, why are they commanding valuation so quickly? So one. Second, it enables marketplace strategy. Now, marketplace is a massive theme. What does marketplace means? Marketplace means कि जिन्हें आप as a bank, as a challenger bank, अपना ही सिर्फ नहीं ऑफर कर रहे हैं, बल्कि आप थर्ड पार्टी solutions भी ऑफर कर रहे हैं, and the best of the best, और आप कस्टमर को चॉइस दे रहे हैं कि वो चूज करे कि उसको क्या, कौन सा चाहिए, right? And there are a lot of examples, आपको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है, किसी और थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट, and that feeds into building better products. You focus on what you want to do better. eKYC में of course branchless banking, operational cost का मैं आपको, मुझे पाकिस्तान का यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं पता है, लेकिन in GCC the cost of acquiring a customer is anywhere between $100 to $250 per customer. Right? Of course these are smaller markets as well. $100 to $250 USD per customer. Yes, because of eKYC, it has been brought down to what? $8 per customer, right? Imagine the impact on the bottom line, right? Imagine, right? So इस वक्त हमारा solution अगर for example different banks में इस्तेमाल हो रहा है, they don't mind paying us per user. क्यों? क्योंकि अगर वो $50 per customer कमा रहे थे, and they've been able to either reduce cost or increase, to cross selling, it's just a different game altogether for them. And then of course the reach, right? The scalability in terms of reaching out to a bigger market without any. एक और मैं ज़बरदस्त डेटा शेयर करूँगा, I mean this is a great framework जहाँ पे आप कह रहे हैं कि यार कंसोर्शियम जब बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए? What is driving it? You know, access to customer को लेकर आता है, कोई access to SMEs लेकर आ रहा है, कोई digital usage में already ahead of the game है, for example telcos and a number of different things. कहीं social media players have a very high frequency of interaction, right? अगर वो लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि this is what I bring, right? And richness of the data and then your ability to mine that data. So again, when you go to level 2 and say कि digital banking क्यों valuation इतनी हो रही है? If you look at it, their sponsorship model is quite different, right? और कि जो consortiums बन रहे हैं, और उसके अंदर ride sharing, Careems of the world are also there, Grabs of the world are there, the media, online media companies are there, FMCGs are there, extra. सऊदी का बहुत बड़ा रिटेलर है, 15 मिलियन कस्टमर फुटफॉल है, they are massively getting into this and they are saying यार मतलब I'm a digital bank in my own right, मतलब मैं हो सकता हूँ and I will apply for the license. I've got 15 million customer footfall who love my product. Why should I leave this money मतलब for someone else, right? अब तो virtual cards वगैरह सब कुछ हो सकते हैं. So again, this framework is also underlying when you assess a digital bank's value versus conventional. ये already हमने जो है टच कर लिया है. ये हमने टच कर लिया है कि अगेन they bring a very variety. For example, Zan Bank एक बैंक है जो कि challenger bank है UAE, जिसको हमने help किया था to build from scratch, right? And उन लोगों ने तकरीबन 100 लोगों के साथ शुरू किया, right? ये बैंक शुरू किया, और 100 लोगों में से आपको क्या कह रहे हैं, स्किल मिक्स कितने, बैंकर्स कितने? Any guess? 30 is the right number. So 1/3 are bankers. 2/3 are non-bankers, 1/3 are technologists, and the 1/3 are people who have nothing to do with financial services industry. वो कहते हैं you understand the customer's lifestyle, you tell us कि बंदा जो है उसको frustrate होता है जब मैं इसको एक click mostly देता हूँ, या वो love, he's in love with my solution, etc. Right? So they are saying banking has been left behind. Bring people from outside of banking, from the Netflixes of the world or the Careems of the world, so that I can understand what do they like and not like. So this is a real example of the composition of a skill force.
This is obvious in terms of which segment do you start with, either the tech savvy or the underserved, right? और खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर बहुत एम्फेसिस है. Why affordable? Why affordable? Because if your intermediation cost is down, then you can pass on some of their advantage to the customers themselves. Correct? Right? अब मैं बता दूं आपको ओपन बैंकिंग का, मैं सिर्फ यूज केस दे रहा हूँ. And again, this is mind-boggling. How many of us have heard of Visa or MasterCard? Do we think they are at the risk of going out of business? Anyone? In their current model, yes, they are. Okay, so breaking news, right? I mean, it's not that it's an open secret. Why? अब जो है पेमेंट जो होती थी वीजा और मास्टरकार्ड और इंटरचेंज फीस जो होती थी, ओपन बैंकिंग का एक यूज केस ये है कि अकाउंट टू अकाउंट एक्सेस कराता है, A to A, right? I mean, I strongly encourage you to look at OBIE, Open Banking Implementation Entity out of UK, जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग एंड वर्ल्ड लीडर है इस चीज़ में, और बहुत सारे यूज केस लेकर आए, दे आर मे बी 4-5 years ahead. अकाउंट टू अकाउंट एक्सेस, जिसका मतलब ये है कि मैं जो इंटरमीडियरी है, हमारे पास पूरी उसके ऊपर प्रेजेंट, I can skip them and I can do a transaction directly from account to account without Visa or MasterCard, for example. So what is Visa and MasterCard doing at the setting? They are changing the business model big time, right? They are acquiring a lot of these companies who are in this space and who are coming out with this payment initiation frameworks, या कि जो propositions हैं, उनको acquire करें left right center. आप सिर्फ देखिए MasterCard ने कितने acquire किए, right? And there are a number of हैरानकुन and very exciting case studies. Plate का नाम किसने सुना है? PLAID, right? सो प्लेट जो है वो उन्होंने क्या किया खामोशी के साथ जनाब, उन्होंने कोई 11,000 फिनटेक्स के साथ और कोई 1,000, 1,500, 2,000 बैंकों के साथ यूएस में पूरा इंटीग्रेशन करके एक अपना पूरा अपना कर दिया. उन्होंने कहा कि आपको किसी भी फिनटेक की जरूरत होगी किसी भी बैंक के थ्रू, दिस इज वन सिंगल इंटरफेस यू हैव. अब होता क्या है, अच्छा वो नॉन रेगुलेटेड मार्केट है यूएस इस सेंस. वो होता क्या है जनाब कि जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, आपने कहा कि उसने कहा कि जी आपको चेकआउट करना है, आपने कहा कि हाँ जी पे करना है, एक बैंक की स्क्रीन आ गई, आपने कहा चूज द बैंक आ जाती है. अगर जो है जब आप कर रहे होते हैं तो सारे बैंकों की लिस्ट आ जाती है, आप कहते हैं हाँ जी ये वाला मेरा बैंक है, वो बैंक का जनाब वो स्क्रीन खोल देता है, आप अपना यूज़र पासवर्ड वगैरह डालते हैं, वो ना पूरी ट्रांजैक्शन हो जाती है. आपका क्या ख्याल है जो स्क्रीन खुलती है जो जिस बैंक की, वो किसकी स्क्रीन होती है? वो किसी बैंक की स्क्रीन नहीं होती है, वो प्लेट की स्क्रीन है, राइट? तो पीछे से उन्होंने इंटरफेस करके, और इसके पीछे पूरी साइंस है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग 20 minutes, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप प्लेट का मॉडल देखें तो इस वक्त वो कई हज़ार फिनटेक्स बैंकों से कनेक्टेड है और इतना पॉपुलर है, टू बिग टू फेल. वीज़ा ने उसको बिड किया था $6 billion में खरीदने में, एंटी ट्रस्ट वालों ने उसको जो शॉट डाउन कर दिया. मैसेज बीइंग a massive player as a user, मेरे को वहमो गुमान में भी नहीं कि I'm not on HSBC's website, right? लेकिन तो things are changing big time, right? Startup or corporate, depending on their sponsorship model, have a very different approach to things. Startup, for example, are focused on user acquisition, right? Startups का बहुत बड़ा मसला ये है कि the cost of user acquisition is very high. और again they are not being made their primary account, right? I mean हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक नई चीज़ आई है इसको ट्राई करो, लेकिन हाँ it will not become my salary account, right? यही है हमारे जहन में, right? तो उनका सबसे ये है कि किस तरह से मैं स्केल बिल्ड करूँ. यूजर एक्विजिशन इज वेरी हाई. मोन्जो का नाम सुना है, राइट? उनका यूजर एक्विजिशन इन day 1 was about between 50 to 60, 50 to 75 pounds a customer, very high, unsustainable, right? Today is down to about 15 pounds, still high. But nevertheless, there is a certain thought out strategy in terms of शुरू में acquire करना है और फिर आगे कैसे करते हैं. क्यों? और फिर भी market valuation दे रही है. क्यों दे रही है? Wow, you are getting these customers who are the customers of the future, and you've got the ability to capture, mine, and use their data, right? And therefore increase the stickiness. ठीक है, आपका path to profitability is still very, very illusional, मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद bet उस पर over हुई. Corporates का different है. Corporate कहते हैं कि यार हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, हाउ कैन वी क्रॉस सेल. उस बेसिस पर अगर आप देखें तो ये स्लाइड जो शो करती है कि लोगों की स्टार्टअप स्ट्रैटेजी हुई क्या है, किस तरह से बैंकों ने स्टार्ट किया. तो जो बिल्कुल नए स्टार्टअप बैंक्स हैं विद नो बैकिंग नो नथिंग, वो आमतौर पर स्टार्ट करते हैं विद अ ट्रांजैक्शनल अप्रोच. वो कहते क्यों अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट. दे स्टार्ट विद पेमेंट्स ट्रांजैक्शन. व्हाई? हाई फ्रीक्वेंसी, राइट? अगर 10 मरतबा मैं आपको अपनी वेब पे ले आऊँगा, अपनी ऐप पे ले आऊँ, तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ यू स्टिकिंग विद मी देन
फाइनेंसिंग जो कि वन ऑफ होती है आपको, प्लस आई एम नॉट देयर येट, राइट? सो एवरीवन दैट इज यंग एंड विदाउट एनी पैकिंग इज स्टार्टिंग विद पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, वहाँ पे फ्रीक्वेंट, लेकिन उसकी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है उनको? क्या फ़ायदा हो रहा है? 10 ट्रांजैक्शंस उन्होंने आपकी प्रोसेस की, क्या फ़ायदा हुआ? Data. So I am getting to understand your buying habits, where, when, how, etc. And as simple as that, उस data को मैं mind करके project कर रहा हूँ इस तरह से कि market कह रही है कि कि I will put a valuation of premium on this. Whereas corporates on the other side are saying, you know what, we already have a captive clientele. और आम तौर पर देखा जा रहा है कि वो लोग कहते हैं कि यार how can I give low risk financing solutions. I'm out of my time, right? So, I'm out of my time. Do I have another 2 minutes? Allow me to request Ashar to continue for at least 5-10 minutes so that we can- 5 मिनट मैं again on the product strategy, I think we've talked about it. बड़ी interesting. आम तौर पर जिनके पास backing नहीं होती है, they're starting with a payment license, EMI license, right? Wallet licenses. जबकि corporate back जो होती है वो full banking license के साथ start करें because their focus is credit businesses. As easy as that. Spot these differences. Transaction business है, यानी payment side से start हो रहा है या credit business है. Credit business day one पर किसी भी young startup का start करना बहुत मुश्किल है, right? The path to profitability is a question that's being discussed big time, especially with the tech valuation meltdown globally, जो हमने देखा है पिछले महीने 2 महीने में. लेकिन और अभी भी there's no clear answer, right? It's all about again scale. However, some sense is being drilled into them to say कि यार भाई अपना user acquisition cost कम लेकर आओ. So for example, Revolut, right, Monzo, ये सब के सब इस वक्त जो है डाउन वैल्यूएशन के ऊपर जो है अपना डाउन राउंड कर रहे हैं with lesser valuation after achieving 40, 50, 60 billion USD valuation, right? So path to profitability, the key message has become secondary. Data, the quality of again your user acquisition, your customer acquisition strategy, your scale-up strategy, the kind of data you're able to capture, right, and the way you're able to mine that data is what is driving your valuation, as simple as that. And so we've talked about it. There are a number of case studies. I guess in the interest of time, what I'll touch on is a few business models, right? और इसमें इसको भी मैं skip करूँगा. There are all these trajectories. Have a look in the context of the conversation we've had, and this is very interesting. In the simplicity, there's no complication behind it now. The simplicity of these launches कि यार मैं कस्टमर का बिहेवियर पहले बेहतर समझ सकता हूँ और इसलिए जो है एक इमोशनल एफिनिटी, एक इमोशनल कनेक्शन बेहतर है बैंक के नए बैंक और कस्टमर के दरमियान, इसलिए मुझे पैसे ज़्यादा दो, आई मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर. अब आप सिर्फ देखिए 1 या 2 बिजनेस मॉडल्स को. अब ये एक बैंक है एस्पायर के नाम से, राइट? फॉरगेट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि यार जब मैं स्टार्ट होऊंगा ना तो मैं एसएमईज को और स्टार्टअप्स को मैं जो हूँ वो केटर करूँगा. अब आप कहेंगे कि यार तुमने 40 मिलियन USD जनाब उठाया है मार्केट से, मार्केट मस्ट हैव सीन समथिंग यू आर डूइंग वेरी डिफरेंट. क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हैं ये लोग? अब लेफ्ट हैंड टॉप से शुरू करें. सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इंस्टेंट अकाउंट ओपन, 5 मिनट में आप अकाउंट ओपन कर लेंगे विदाउट एनी हैसल एंड यू लव द एक्सपीरियंस, राइट, ऑन द स्पॉट. नंबर 1. नंबर 2, जब भी आप पेमेंट्स वगैरह करेंगे तो उसकी मैं ऑटो कैटेगराइजिंग करूँगा. क्या मतलब है? मैंने जहाँ जहाँ खर्च किया है इधर एज एसएमई और एज इंडिविजुअल, वो जियो टैगिंग भी हो जाएगी, वो मर्चेंट टैगिंग भी हो जाएगी. एंड टुमारो आई कैन बैंक कैन गिव मी द डेटा. कंपेयर टू माई पियर्स आई एम स्पेंडिंग अ लॉट मोर ऑन माई कॉफी एवरी डे, या जो है ऑन माई क्लोथिंग या ऑन माई यूटिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑटो कैटेगराइजेशन is a theme that gives rise to massive budgeting and spending planning. उन्होंने वो किया, and it's a very simple service. उन्होंने क्या जी, फास्ट क्रेडिट लाइन. क्रेडिट मेरे पास तो है नहीं, मैं बैंक हूँ नहीं, तो उन्होंने एक दूसरी लजारा कंपनी है उससे कहा कि यार तुम क्रेडिट लाइन देना, मैं तुम्हें जनाब ये इसका क्रेडिट प्रोफाइल दूंगा, उस पर थोड़ा बहुत अपना दे देना. कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने जनाब वीज़ा और नियम से कहा कि यार तुम्हारा हम जो ना होस्टेड बेसिस पे ले लेंगे. करेंसी मल्टी करेंसी उन्होंने अपनी बना ली. उन्होंने कहा कि मैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करूँगा. सपोर्ट, अब सपोर्ट आप
कहेंगे छोटी सी चीज़ है, एसएमएस आते हैं, अभी भी आते हैं नहीं आते हैं एसएमएस बैंक से आते हैं, राइट? डिजिटल बैंक से आप तो नहीं आएंगे, क्या आएगा? इन ऐप नोटिफिकेशन। अमेजिंग, जस्ट आस्क एनी बैंक कि तुम लोग एसएमएस पे कितना खर्च करते हो, राइट? और उसी को अगर आप इन ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू ले आएंगे तो इमीडिएटली वो तमाम वो कॉस्ट किया बैंकों का कितनी बार है, एंड इट्स नॉट एज जेनेरिक एंड फ्रस्ट्रेटिंग। अकाउंटिंग इंटीग्रेशन, एक और कंपनी को लेकर है, उनसे कहा कि जनाब यार कि जो अकाउंट बुक्स वगैरह सारे डेटा के बेसिस के ऊपर जरा इसको स्ट्रक्चर कर दें, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मैं क्या करूँगा आपके साथ इंटीग्रेट किया मैंने सिर्फ आपके एपीआई के साथ टू ब्रिंग दैट सर्विस ऑन माय ऐप। इन चीज़ों के ऊपर क्या ज़हन अपील करता है कि $40 मिलियन इन्होंने उठाया होगा मार्केट से? आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, इन्होंने तरह किया है, इन्होंने इकोसिस्टम क्रिएट किया है और बहुत ही बेसिक सिंपल से सिंपल चीज़ जो है वो ऑफर किया है मार्केट में। इसी तरह से बैंकेबल है, ये है, इन्होंने $100 मिलियन उठाए, क्या कर रहे हैं? ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ऐप कंट्रोल का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने जो उसके साथ एम्बेड कर लिया है, उन्होंने मास्टर कार्ड के साथ इंटीग्रेट कर लिया है, उन्होंने पेमेंट्स गेटवे के साथ कर लिया है, उन्होंने कहा है कि यार मैं तुम्हें जो ना तुम्हारे फॉरेक्स के ऊपर मैं ज़बरदस्त जो है रेमिटेंसेस के ऊपर ज़बरदस्त उनको दूंगा। और उन्होंने एक यूनिक चीज़ है कि मल्टीपल सब अकाउंट्स दे दिए, एक आपने एक मेन अकाउंट खोला और वर्चुअल आईबैंस जो होते हैं उसके थ्रू आपने सब अकाउंट्स दे दिए। अगेन अमेजिंग, द मार्केट रिस्पॉन्स इज अमेजिंग, राइट? $1 बिलियन के करीब के डिपॉजिट्स इनके पास हैं। तो I'll leave this here, लेकिन what amazed me is again the simplicity of the core proprietary offering, the quality of integrations, right? And saying कि मैं बहुत ज़्यादा complicate नहीं करूँगा, मैं customer को क्या दे रहा हूँ, मैं I'll keep it very simple. I understand the mindset of the customer, उनको बहुत simple चीज़ चाहिए जो कि आराम से काम कर सके, and and it's working. I mean, look at the kind of numbers that they are, and yes. There is, of course, the Pakistan market is different from Saudi market, which is different from UK market. It depends on the risk capital, it depends on the tech infrastructure, etc., etc. That's not the point. The point is, have a look at the digital bank's propositions and how, by harnessing simplicity, they are able to command, massive customer loyalty and therefore valuation. So I saw the first yawn, so I'll stop there. It ends as well. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू टू अशर, आपने टाइम तो ज़्यादा लिया बट यू हैव एक्चुअली सेट द ग्राउंड फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट। अशर ने आपको फ्यूचर की ग्लिम्स दिखाई, आई विल स्टार्ट विद द पास्ट एंड आई विल सी कि हम स्टेट बैंक में क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे थे और क्या देखकर हमने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ इनिशिएटिव्स लिए, and where are we see the industry going, where we want the industry to go. पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में आप सबको मालूम है, जो शायद वैसे ही एक नॉमिनल फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो इट्स लेस देन 20%, हम कहते हैं 25% हो गई है, 23% हो गई है, लेकिन फॉर मी फाइनेंशियल इंक्लूजन इज व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग digital channels for their day-to-day transactions on a daily basis. This is what financial inclusion is. ये नहीं है कि आपने अकाउंट खोल के रख दिया और आप डर रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए। और मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बड़ा फ्रीक्वेंटली और बड़ा कंफर्टेबली अपनी एप्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर योर डे-टू-डे ट्रांजेक्शंस। नाउ दिस इज अ रूम विच इज फुल ऑफ प्रोफेशनल्स and I was expecting 100% hands to be raised, but unfortunately this is not the case. Even in State Bank, हमारी कॉर्पोरेट टीम की मीटिंग होती है और मैं ये इस तरह के जब सवाल पूछता हूँ तो हार्डली कुछ लोग होते हैं। हमारी कॉर्पोरेट्स जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आज भी चेक लिखना और उस पर साइन करना बड़ा फख्र से उसको समझा जाता है। दिस इज नॉट इंक्लूजन एंड दिस इज नॉट
what we all are aspiring for. This is not what we have कि हमारे पास मिलियन 100 मिलियन अकाउंट्स खुल जाएं या हमने रास पे इतने मिलियन आईडीज बना दी या हमारी IBFT इतनी ज़्यादा हो रही. But I think what we need to look at is a holistic problem that why go digital. अगर आप डिजिटल जाएंगे, अगर आपके बिजनेसेस डिजिटल काम करेंगे, you will of course need access to digital payments, you need access to digital financial services. लेकिन ऑल दैट ऑल्सो रिक्वायर कि उसकी जो सेकंड लेग है, हमारे जो बिजनेस हैं, रिटेल की पूरी शॉप्स हैं, हमारी जो SME सेक्टर है, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हमारी गवर्नमेंट है, ये भी डिजिटल हो. तो द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर. वी कैन ब्रिंग द हॉर्स टू द वाटर बट वी कांट मेक इट ड्रिंक. सबको मालूम है हम जो दुनिया में जिन कंट्रीज ने तरक्की की है, आज हम फख्र से जिन कंट्रीज की एग्जांपल्स बताते हैं, उन सब के बिजनेसेस ने अपने आप को डिजिटल किया. When you go digital, your GDP goes up. और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हमारा GDP बहुत बड़ा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव. हमारी बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस इस तरह की फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए थी जो छोटे छोटे शॉक्स पे हो जाती हैं. आई थिंक वन ऑफ द core reason is that we have not adopted digital in our, with our hearts and minds. That's my own belief. अगर बड़े स्टोर्स हैं, वो अगर मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, 3-3 महीने में एक नया स्टोर खोल लेते हैं. इट्स बिकॉज दे गॉन डिजिटल. उनकी इन्वेंट्री सिस्टम्स, उनकी पेमेंट सिस्टम्स सारी डिजिटल है. तो डिजिटल जाना इसलिए जरूरी है कि इट इंक्रीजेज आवर GDP, इंक्रीजेज आवर ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ती है. So what was the situation 10 years ago? Now I've been working with State Bank since 1996, I think, or 97. And I've been involved in almost all the major digital initiatives there, starting with the implementation of a core banking system. हमने State Bank, जब मैं आया था, तो State Bank पूरा बड़े बड़े हॉल होते थे और उसमें जो है बड़े बड़े रजिस्टर रखे होते थे और उस पर लोग काम कर रहे होते थे. And I'm very proud to say that I've been part of our journey where we actually changed all that. Not just email, not just core banking system, not just enterprise resource planning system, not just data warehouse systems. ये सारे हमने लगाए. उसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम हमने लगाया जो कि बैंकों को कनेक्ट कर देता है स्टेट बैंक से, और आज ऑन दी एवरेज डेली 1.5 ट्रिलियन रुपीस प्रोसेस करता है डेली इंटरबैंक के अंदर. और फिर अब रास्त और फास्टर पेमेंट सिस्टम्स, और उसके दौरान जो जर्नी है, आई जस्ट टेक यू थ्रू दैट. बट 10 years ago आई थिंक मेरी टीम ने ये स्लाइड्स बनाई हैं, तो आई आस्क्ड देम कि मुझे दिसंबर के क्वार्टर की आप फिगर्स दें. ये दिसंबर के क्वार्टर 2012 की फिगर्स हैं, ठीक है. तो आप खुद ही नंबर्स को देख लीजिएगा और जरा इसको जहन में रखिएगा. ये दिसंबर लास्ट ईयर की पोजीशन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लॉट हैज चेंज, ठीक है. हमारी जो ई बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं. हमारी जो मोबाइल बैंकिंग के यूजर्स हैं ये ऑलमोस्ट 12 मिलियन है. ये सिर्फ बैंकिंग के यूजर्स हैं. इफ वी ऐड द यूजर्स ऑफ Easy Paisa and Mobilink and Jazz Cash and the branchless banks, I think this number goes up to 28 million today. और इसके साथ साथ जो है इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स भी हमारे यहाँ आ गए हैं. ATMs जो 4 या 5 हज़ार होते थे वो आज बढ़ गए हैं. 2012 में हमारा जो कार्ड एक्वायरिंग का बैंक्स का बिजनेस था POS के ऊपर, वो सारे बैंक्स शायद 4 थे, वो सारे लॉस में थे, सारे मेजर लॉस मेकिंग थे. आज वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं. वी आर, आई थिंक दिस मंथ वी क्रॉस 100,000 POS मशीन्स. हमारा टारगेट ये है कि हम इसको नेक्स्ट 2 years में 500,000 तक लेके जाएंगे. और ई कॉमर्स जो ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी था, आप आज देखते हैं कि किस तरह से उसको लोग यूज कर रहे हैं, और एप्स आ गई हैं, उन एप्स के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. कार्ड्स भी हमारे ठीक ठाक हो गए हैं. तो अगर इसको देखें तो ऑफ कोर्स वी हैव मेड प्रोग्रेस, बट दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज इनफ. और इस पे मैं भी आगे बात करूंगा कि हम क्या करना चाहते हैं. मगर इन 10 सालों में हमने कुछ काम किए. एक तो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके और कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके वी सेड लेट्स हैव अ पेमेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज वी आइडेंटिफाइड, जैसे अशर ने बताया, कि पेमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस इन DFS. और मैं खुद भी चूंकि पेमेंट्स को ही हेड कर रहा था उस वक्त, वी सेड के लेट्स वर्क ऑन पेमेंट्स एंड लेट्स हैव अ स्ट्रेटजी. तो हमने एक नेशनल पेमेंट सिस्टम स्ट्रेटजी आफ्टर लॉट ऑफ कंसिडरेशन हमने बनाई, और इस पेमेंट स्ट्रेटजी को हमने
अक्टूबर या नवंबर 2019 में इसको लॉन्च किया जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट स्टेट बैंक आए थे। इस स्ट्रेटेजी में हमने 3-4-6 चीजें आइडेंटिफाई की। हमने कहा एज यूज केस वील फोकस ऑन रिटेल मार्केट। नाउ रिटेल मार्केट इज सीवियरली अंडरसर्व्ड। दूसरी चीज जो हमने कही कि हम रेमिटेंसेस विच इज ट्रांसफर ऑफ मनी, चाहे डोमेस्टिक हो या क्रॉस बॉर्डर हो, हम उसको फोकस करेंगे। और तीसरी चीज हमने कहा कि हम गवर्नमेंट पेमेंट्स को टारगेट करेंगे। हमें गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन पेमेंट्स, हम इसको डिजिटाइज करेंगे, तो उनसे हमने बात करनी शुरू कर दी। ऑन दी अदर हैंड हमने कहा अपने लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इंप्रूव करेंगे विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। पहला ऑब्जेक्टिव ये था, और हमने ये कंक्लूड किया उस वक्त, कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम इज नॉट इनफ। पूरी दुनिया में, जैसे इन्होंने बताया शरने के वहां पर ओपन बैंकिंग की बात हो रही है, फिनटेक्स की बात हो रही थी, तो वी सेड कि वील हैव टू अलाउ एंड इनेबल द एंट्री ऑफ नॉन बैंकिंग फिनटेक्स इनटू द पेमेंट स्पेस, एटलीस्ट स्टार्टिंग विद पेमेंट स्पेस। और उसके बाद फिर हमने ये कहा कि हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, और साथ ही साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात की, क्योंकि अगर पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिटेल और होलसेल दोनों लेवल पे अगर आपका फास्टर होगा, इंस्टेंट होगा, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है। और फाइनली हमने ये कहा कि हमारे अपने जो ओवरसाइट की कैपेबिलिटी है स्टेट बैंक की, उसको इन्हांस करना है। आई एम अगेंस्ट दी सो कॉल्ड सुपरविजन। बहुत ज्यादा बैंकों को दबाने की जरूरत नहीं होती, बट यू नीड टू हैव एन आई ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक फॉर दैट हैविंग एक्सेस टू डेटा रिपोजिटरीज, हैविंग एक्सेस टू डेटा टूल्स, हैविंग एक्सेस टू maybe automated tools based on AI, based on machine learning, this capacity is very important. So we said that we'll work on this and we'll improve our own capacity. So right now हम कुछ कंसल्टेंसीज इस वक्त करवा रहे हैं, जिसमें से एक कंसल्टेंसी है कि हम अपने लीगल फ्रेमवर्क को कैसे अपग्रेड करेंगे, और दूसरी है कि हम अपनी ओवरसाइट कैपेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे, और तीसरी जो कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं कि आफ्टर रास्ट what are we going to do about the overall payments infrastructure, how we take it to the next level. तो कुछ स्टेप्स हमने लिए। आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज वी सेड कि हम अपने आप को बदल लेते हैं। स्टेट बैंक स्टार्टेड टॉकिंग टू द जनरल पब्लिक, स्टार्टेड टॉकिंग टू द इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा खासतौर पे पिछले 3-4 साल में स्टेट बैंक की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हुई, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज हुई है। हमने कहा कि लेट्स स्टार्ट लिसनिंग टू व्हाट पीपल आर सेइंग एंड let's have a systems approach to problem solving. Instead of looking just at different components, let's start looking at the entire system and let's try to see कि हम कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं जो हमारे सामने है। दूसरा काम जो इंडस्ट्री एंगेजमेंट्स की मैंने बात की, बैरियर्स हमने कहा खत्म करते हैं, जैसे मैंने बताया कि फिनटेक्स को हम ले आते हैं। इंसेंटिव्स कैसे बिल्ड किए जाए, तो एक बड़ी बहस है हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन में। मैं जब भी काम करता हूं तो मुझसे लोग कहते हैं कि आप जब तक एफबीआर है आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक, क्योंकि लोग डिजिटल नहीं होना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका डेटा किसी के हाथ में लगे। नाउ दैट्स अ वेरी कॉमन आर्ग्यूमेंट जो मुझे सुनने को मिलता है। तो व्हाट वी से इज कि लेट्स बिल्ड इंसेंटिव्स इनटू द सिस्टम, लेट्स रिमूव फ्रिक्शन, और करके देखते हैं कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। लोग शायद उससे, तो जब कोविड आया हमारे लिए एक बड़ी वैसे तो एक बड़ी दुनिया के लिए प्रॉब्लम थी, हमने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। हमने इंटरबैंक फंड ट्रांसफर्स के अंदर से फीस हटा दी। हमने कहा जी बैंक्स बड़ा रोए, उन्होंने कहा जी ये आपने बड़ा जुल्म कर दिया हम पे। लेकिन व्हाट वी सॉ वाज कि वो आईबीएफटी जो मार्च 2020 में रोजाना 1 से 1.5 लाख ट्रांजेक्शन्स डेली होती थी, दैट जंप टू ऑलमोस्ट 800,000 ट्रांजेक्शन्स इन अक्टूबर। विद इन अ स्पैन ऑफ 6-7 months, आप 7 times 8 times हमारी आईबीएफटी बढ़ गई। आज वो ऑलमोस्ट 1.2-1.3 मिलियन ट्रांजेक्शंस पर डे कर रहे होते हैं। वी ऑल्सो सॉ द इमरजेंस ऑफ वन बिल बाय वन लिंक। हमने उनका जो एसोसिएट प्रोग्राम है जिसमें कई फिनटेक्स एक्सेस ले रही हैं डिजिटल पेमेंट सर्विसेज की, तो बहुत सारी एक्टिविटी हमने ये होते देखी कि जब हम इंसेंटिव बिल्ड करते हैं तो लोग आते हैं। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो डिसइंसेंटिव, एंड आई एम विद ऑल अपॉलजीज टू माय बैंकर फ्रेंड्स, कि हमारे बैंक्स जो है ना वो कस्टमर को इज्जत नहीं देते। यानी अशर वो ऐप वगैरह तो छोड़ दें, जो ब्रांच में जाता है उसको भी बड़ी मुश्किल से उसको कुछ थोड़ी बहुत सर्विस मिलती है। तो शायद हमारी आदत भी है पाकिस्तान में, आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ एज वेल, कि हम कस्टमर सर्विस का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ई कॉमर्स पे इतनी एक्टिविटी हो रही, लेकिन आज आपकी फूड डिलीवरी में अगर एक ऑर्डर आपका मिस हो जाए
तो आप एक छोटे से 500 रुपए के क्रेडिट के लिए बड़ा आपको कॉलिंग करनी पड़ती है और बड़ा मसला करना पड़ता है। दिस शुड ऑल बी ऑटोमेटिक। तो बैंक्स कस्टमर सर्विस नहीं देते हैं, ये हमें अंदाजा हो गया। और हमें ये अंदाजा हो गया कि फ्रिक्शन बहुत है, अकाउंट ओपनिंग में बहुत फ्रिक्शन थी। ये लेसन लर्न मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट ओपनिंग जैसे अशर ने बताया बहुत फ्रिक्शन है, उस पर हमने काम किया और हमने कहा जी रिमोट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे देते हैं। वो भी अभी भी उसमें भी बहुत मसले आ रहे हैं। वीजा और मास्टर की आपने बात की, हमने कहा जी ऐसा करते हैं कि लेट्स हैव आवर ओन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो वी वर्क विद वन लिंक एंड वी सेड कि जी लेट्स इशू पे पार्क कार्ड। लेकिन पे पार्क कार्ड इशू नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि वीजा मास्टर के पास डीप पॉकेट्स हैं, वो बड़ी वर्स करवा सकते हैं बैंकर्स को, उनको लेके जा सकते हैं। दे कैन स्टिल साइन अशर, दे कैन स्टिल साइन बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन स्टिल डोमिनेट द मार्केट। आप डिस्पाइट आप सही कह रहे हैं कि उनका भी वो खत्म हो रहा है, बट दिस इज व्हाट दे डू। तो उसके साथ हमने कहा ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो वी कॉन्शियसली स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड्स। ट्रस्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में अच्छा रेगुलेटर वो होता है जो स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करता है। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि शायद जो बाहर मुल्कों ने तरक्की की है, वहां सड़क बनाने का भी एक स्टैंडर्ड है। वहां ये भी है कि फुटपाथ कितना ऊंचा होगा और गटर ढक्कन कितना नीचे होगा। दे ऑल हैव इट रिटन इन स्टैंडर्ड्स। I think regulators and governments should actually work on just giving standards and ensuring हो रहे हैं। हमने पेमेंट्स में स्टैंडर्ड किया, हमने कहा हमारी पूरी कार्ड मार्केट ईएमबी कंप्लाइंट होगी। हमने कहा हमारी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है उस पर 3D सिक्योर लगेगा। हमने कहा हमारे जो मर्चेंट स्पेस है वो PCI DSS कंप्लाइंट होगी। हमने अभी रिसेंटली आपने शायद देखा हो मोबाइल ऐप सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क बनाया है। वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड with a mobile app security framework by a regulatory authority, and we worked with International Telecommunication Union on that. और उन्होंने हमें एक्नॉलेज किया है कि स्टेट बैंक ने ये पहला काम किया है जो दिया है। मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमने दिए हैं कि एक ऐप बनानी है तो इसकी सिक्योरिटी इस तरह की होनी चाहिए। वी विल कंटिन्यू टू कम अप विद दो स्टैंडर्ड्स ताकि ट्रस्ट आए लोगों का, लोगों को पता चले कि हम ये जो डिजिटल सर्विसेज यूज कर रहे हैं इसमें हमारे पास कुछ ये ऐसे नहीं है कि मैं कैश लेके जा रहा हूं और कोई पिस्तौल दिखा के पैसे ले जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मेरे पैसे जाएंगे भी तो आई विल हैव अ बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट मनी बैक। तो चार्ज बैक्स और लाइबिलिटी के फ्रेमवर्क्स और ये सारे हम इंडस्ट्री के साथ मिलके इसको बनाते हैं। कार्ड मार्केट में हमने MDR की पूरी वीजा और मास्टर बहुत हमारे उन्होंने रेजिस्ट किया, हमने उसकी पूरी रिजीम चेंज कर दी। हमने कहा जी नहीं, जो मशीन लगा रहा है मर्चेंट के पास जाके बैंक उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो कार्ड इशू कर रहा है उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट में से कम शेयर मिलेगा। एंड वी डिड दैट, वी कंसल्टेड अ लॉट और उसका नतीजा ये हुआ कि ओवरनाइट पाकिस्तान बिकेम अ एक्वायरिंग मार्केट। कई बाहर के जो अब एक्वायरर्स हैं वो आके कह रहे हैं कि हम यहाँ पॉस का काम करेंगे, POS मशीन वगैरह लगाएंगे। ये मैं बात कर चुका हूं तो आई स्किप दिस वन। कुछ EMI के लाइसेंसेस हमने इनिशिएट किए और हमने PSO PSCs के लाइसेंस इनिशिएट किए। आज 4 हमारी EMIs हैं जो लाइव हैं, ऑल्दो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और PSOs आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आप अशर बात कर रहे थे, जो हम पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम चाहते हैं कि हमारे बैंक्स पार्टनरशिप्स करें। हमारे बैंक्स हर काम खुद करने की कोशिश ना करें और पार्टनरशिप करें टू रीच कस्टमर्स। EMIs जैसे एक है, इसी तरह पेमेंट गेटवेज हैं कि अगर आप कस्टमर एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और के कस्टमर को सर्विस देना शुरू कर दें। सो दैट्स व्हाट वी वांट। थोड़ा सा रास के बारे में मैं आपको बता दूं कि सब आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है बेस्ड ऑन ISO 20 और 22 स्टैंडर्ड या 222 स्टैंडर्ड कहते हैं। इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड ग्लोबली फॉर मेकिंग पेमेंट्स, और ये इसलिए अच्छा स्टैंडर्ड है, इसकी अपनी APIs बहुत रोबस्ट हैं और इसके साथ कॉन्टेक्स्ट पूरा ट्रैवल करता है। और आई थिंक जो दुनिया में एक बहुत अरसे से ये बात चल रही थी कि वन थिंग दैट पीपल यूजुअली से कि इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स बने HTTPS और वगैरह, जो एक बेसिक फीचर मिस हो गया वो माइक्रो पेमेंट्स का था। अगर ब्राउजर में माइक्रो पेमेंट्स की कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाती तो आज दुनिया और बहुत डिफरेंट होती, और इसीलिए बात वेब 3.0 और ये सारी हो रही है। तो ISO 20 और 22 स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि थोड़ा सा फ्यूचर का है, जो कि पेमेंट्स के साथ कॉन्टेक्स्ट ट्रैवल करने की फैसिलिटी देता है। हमने इसीलिए ये रास का सिस्टम बिल्ड करवाया ऑन ISO 20 और 22,
स्टैंडर्ड। इसका अपना एपीआई गेटवे है और वंस वी कंप्लीट द लॉन्च हमारा यही प्लान है कि हम क्विकली डिप्लॉयमेंट करेंगे डिफरेंट यूज केसेस की फॉर द इंडस्ट्री। तीसरा इसमें बल्क का यूज केस रेडी है। आप में से जो लोग कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अब आप अपने बैंक से कहें कि आपको रास की एक्सेस दे फॉर योर बल्क पेमेंट्स, चाहे वो सैलरी ट्रांसफर्स करनी हो, चाहे वो डिविडेंड्स पे करने हो, चाहे वो मैस जो 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 पेमेंट्स जो मल्टीपल क्रेडिट्स होती हैं वो करनी है, तो यू कैन यूज रास फॉर दैट एंड इट्स फ्री। P2P में हमने जो तजर्बा किया, वी लॉन्च P2P सर्विस इन मे दिस ईयर, इन February दिस ईयर। उसमें हमारे पास अभी तक ऑलमोस्ट 11.5 मिलियन रास्त आईडीज बन गई हैं। वी आर डूइंग 1 बिलियन रुपीस हम डेली करते हैं, विच इज ऑफ कोर्स नो वेयर नियर व्हाट वी वांट इट टू बी। 1 लाख के करीब ट्रांजेक्शन होती है। वी वांट दिस टू बी लाइक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। जो तीसरा काम हम आप कर रहे हैं, वी आर डिप्लॉइंग द रिक्वेस्ट टू पे सर्विस इन रास, तो विच मीन्स के थर्ड पार्टीज, number one, they'll have direct access to payment systems. So their payment can still be handled by the bank, but they can lodge payments directly to Rast. And second, they can send request to pay to you. तो अगर आप मर्चेंट के पास जाते हैं और मर्चेंट अपनी ऐप से आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है कि जी ये आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा एंड यू से यस, तो वो 1000 रुपीज पे हो जाएंगे आपके अकाउंट से। It will also give access to so-called third-party aggregators and super aggregators, जो कि merchants को aggregate कर रहे होंगे, bills को aggregate कर रहे होंगे, and they will have access to the RAS system. और इसी साल हमने लास्ट मंथ आई थिंक QR कोड का स्टैंडर्ड पाकिस्तान का बना के रिलीज कर दिया, जिसमें कि P2P का एक स्टैंडर्ड है और P2 मर्चेंट्स यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स का स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड हमने बनाकर इशू किया। हमने बैंक्स को मैंडेट किया है कि रास विल बी द डिफॉल्ट रेल्स, और हमारा जो हमारा विजन है वो यही है कि किसी भी आप QR को स्कैन करें, द पेमेंट शुड नॉट बी डिनाइड, इट शुड बी प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारी QR में एक्टिविटी हुई पिछले 2-3 साल में, 4 साल में, लेकिन उसमें ट्रैक्शन हमें इसलिए नहीं मिली, ये हमारी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी और हर कोई अपने साइलोज में काम कर रहा था। तो वी सेड के लेट्स डू अवे विद द साइलोज एंड लेट्स हैव आवर ओन QR। तो ये कुछ रास से रिलेटेड हमने काम किए। This is our payment for this is our vision for a digital payments ecosystem। और अगर आप देखें तो हमारे पास अब पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से है, अब अशर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक बहुत ही थोड़ी कंट्रीज में से, जिसमें के 2 रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं इंटरऑपरेबल। द फर्स्ट इज रास्त, इंस्टेंट है, यहाँ अकाउंट्स डायरेक्टली स्टेट बैंक के अकाउंट से लिंक्ड हैं, आप जो पेमेंट करेंगे वो इमीडिएटली सेटल हो जाती है। इसमें सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, एंड इट्स फ्री। और अगर ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, अब रास काम ऐसे करता है कि रास को काम करने के लिए आप सेंडिंग बैंक एंड रिसीविंग बैंक दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी है। एक सिस्टम पे डाउन होता है तो ये पेमेंट रिजेक्ट कर देता है। इससे बैंक्स मुसीबत में आ गए। अब उन्हें पता चल गया है कि स्टेट बैंक 24/7 अब हमारे पास अलर्ट्स आ रहे होते हैं कि जी ये बैंक का सिस्टम बैठ गया या ये बैंक की ऐप अवेलेबल नहीं है, और फिर हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो अब कह रहे हैं कि एक नया मसला हमारे लिए खड़ा हो गया है कि अब स्टेट बैंक 24 घंटे हमारे सर पर बैठा हुआ है। बट दैट्स व्हाट रास्ट इज। अगर रास नहीं है तो बैकअप में हमारे पास वन लिंक का इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम अभी भी है। इट्स दी लार्जेस्ट सिस्टम राइट नाउ इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शंस। तो हमारे पास 2 रिटेल सिस्टम्स हैं। उसके बाद हमारे पास नए प्रोवाइडर्स आ गए हैं, जैसे कि EMIs और फिनटेक्स, और जो हमारी थर्ड पार्टी फिनटेक्स आ गई हैं, और इसी तरीके से हमारे पास PSOs आ गए हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। वी हैव गॉट रास्ट हियर, वी हैव गॉट अ लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम प्रिज्म हियर, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट ऑपरेटर्स, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स लाइसेंस बाय स्टेट बैंक, और फिर हमारी जो एक्वायरिंग की एक्टिविटी चल रही है और ये सारा, और तो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, कि ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा टू द इंडस्ट्री। और अब यहां से हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, आई थिंक दिस इज माय लास्ट स्लाइड। हम आपने बात की ओपन बैंकिंग की, तो वी आर वर्किंग ऑन ओपन बैंकिंग फ्रेमवर्क। उसको काफी दिन से हम स्टडी कर रहे हैं। हमने OBEI की आपने बात की, CMA की वहां पर UK में, इसके अलावा फिलीपींस में, ब्राजील में और ऑस्ट्रेलिया में, हमने इन सब के रेगुलेटर से जिन्होंने काम किया हमने बात की। हमने अपना एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क भी बना लिया है। आई थिंक वेरी सून जो पहला काम हमें करना है कि पाकिस्तान में हमें सर्टन यूज केसेस के लिए APIs को स्टैंडर्ड करना है। वो काम शुरू कर दिया उस पर। जो दूसरा काम हमने करना है उसके साथ वो
जो बहुत बड़ा एक एलिफेंट इन द रूम है वो है कि प्राइसिंग में किस तरह हम इस रिडल को हल करेंगे, क्योंकि डेटा यूजर एक है और डेटा होल्डर एक है और फिर ये सारी एंटिटीज हैं, हाउ दे विल हैंडल प्राइसिंग। और फिर रेसिप्रोसिटी एक बड़ा चैलेंज है कि जी सिर्फ बैंक्स करें, हम ही क्यों डेटा दें, टेलकोस भी तो इतना डेटा लेके बैठी हैं, अगर उन्हें हमारा डेटा चाहिए तो दे शुड आल्सो शेयर डेटा विद अस। या हम अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेटा दे रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म भी अपना डेटा हमसे शेयर करे। तो ये रेसिप्रोसिटी एक चैलेंज बन रही है, इसको वी नीड टू रिजॉल्व दी इश्यूज। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं, व्हाट वी वांट टू डू, जो आपने बिल्कुल सही कहा, हम कार्ड बेस से ए टू ए पे मूव करना चाह रहे हैं, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स पे। अब हम चाहते हैं कि कार्ड की ट्रांजेक्शन होती रहे, जिसको बाहर जाके इस्तेमाल करना है, आज भी वीजा मास्टर ये बड़े नेटवर्क्स हैं, बट जो हमारी साइज है परसीव, जो हम साइज देख रहे हैं, उस साइज के हिसाब से देयर शेयर इज स्टिल लो, और वो अभी भी काम कम कर रहे हैं। एंड वी वांट टू ए अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स टू ग्रो, और उसके लिए जाहिर है जो व्हीकल है वो आपका मोबाइल ऐप है और उसके साथ आपका क्यूआर कोड है, और नए प्रोवाइडर्स हैं जैसे डिजिटल बैंक्स या ईएमआईज या ये सारे हैं जो कि इसमें करें। बैंक्स भी आ रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन बैंक्स के साथ जो हमें एक सबक सीखने को मिल रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस पे दे आर जीरो। यूजर एक्सपीरियंस पे उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या करें। एक एक्सट्रीम पे कुछ लोग बैठे हैं जो सुपर ऐप बनाने के चक्कर में कह रहे हैं हर चीज हम एक ही ऐप में डाल देंगे, बट आई थिंक द आइडिया इज टू हैव अ वेरी सिंप्लीफाइड इंटरफेस फॉर पीपल, एंड पीपल हु कैन यूज टिकटॉक, पीपल हु कैन यूज फेसबुक, पीपल हु कैन यूज इंस्टाग्राम। ठीक है, बड़े आराम से लोग यूज कर लेते हैं, बच्चे तक यूज कर लेते हैं, लेकिन आप किसी बड़े काबिल से काबिल को कहें यार जरा बैंक की ऐप खोल के इस्तेमाल करना होगा, नहीं भाई कुछ हो जाएगा, मेरे पैसे कहीं चले जाएंगे। तो वी नीड टू टेक दैट फियर आउट एंड वी नीड टू मेक थिंग्स सो सिंपल ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें। दैट्स अ बिग चैलेंज, दैट्स टर्निंग आउट टू बी अ बिग चैलेंज। राज की जर्नी में अब हम स्टेट बैंक में ओवरसाइट के तौर पे हम हर बैंक की टीम को बुला के बिठाते हैं एंड वी गो थ्रू ईच फीचर ऑफ द ऐप, हम उसको कहते हैं इसको सिंपल करो। तो ये वहां पर हमें बहरहाल चैलेंजेस आ रही हैं। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात की साइबर सिक्योरिटी और ट्रस्ट, ये एक मेजर हमारे पास जो है वो चैलेंज है जिसको हम देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल, कुछ और बात ही नहीं, बट आई थिंक देयर विल बी क्वेश्चंस एंड आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। थैंक यू। I think let's take the conversation one step up. So I'll request Asher to please join me on the stage, and let us now ask questions that naturally come to our mind with regards to the landscape of banking. For that Q&A, we have two options. So either you can log into slide.do. So you can use, I think PC Banquet is the Wi-Fi connection that you can use, and go on to slide.do. Use the event code /CFA. That will take you to the page where you can post your questions and I can read from here. However, if you prefer to ask question, you can also raise hand as well. So let us make this session interactive. Until you guys are logging in and making questions, I'll be starting the few initial questions. Financial sector, we have seen Pakistani market. My question is again, what we really think about when we talk about digital banking is it really going to threat Pakistani banking sector? Now, Pakistan is a market which is a very, what I understand is a unique market in terms of unbanked population, in terms of the cash economy. We all know currency in circulation is about 30%, that's on the rise. So people want to avoid the formal sector. Now, is it really a threat to the existing banking sector? I mean, we have seen the evolution of institutions. So SPP has taken a lot of steps. So we have seen progress on transaction economy. So yes, transactions are now digitized. Then in the second step, so we saw first Easy Paisa, who really digitized the transactions and people started sending money and using the digital channels. Then we saw transactions happening and now people started using mobile wallets and the landscape was evolving. We have recently started seeing, smaller institutions coming with lending products. But is it going to really change in a big manner
I mean, the existing banks with huge deposits, that's the conventional business model that we used to know. So there is bank deposit, you earn, so you pay smaller cost to the deposit holders, you lend it at a higher spread. And along with that, you service the customer and earn fee. So that's how the banking business model is. So how is it going to change Pakistan's economy in the context of our economic dynamics? So I would request Ashar Saab and then probably Sohail Saab as well to see to add how he is going to see the change in the future. जी नहीं, बहुत शुक्रिया. आई थिंक अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देयर आर टू पार्ट्स टू इट. आई थिंक challenger banks or neo banks will not be a direct or a near term threat to existing incumbents जिनकी रीच, उनका साइज काफ़ी बड़ा है, राइट? एटलीस्ट नॉट इन द नियर टर्म. प्लस ये है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा, कि देयर इज सो मच स्कोप कि इफ दे गो फॉर डिजिटल savvy और द अनबैंक्ड और अनहैपीली बैंक्ड और अंडर बैंक सेगमेंट, तो देयर इज इनफ स्पेस देयर. मेरा ख्याल है जो इमीडिएट थ्रेट है बैंक्स को, वो है फ्रॉम द चेंजिंग बिजनेस मॉडल दैट विल बी ड्रिवन बाय कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड बाय रेगुलेशंस एज वेल. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गेटिंग कमोडिटाइज, जो कि बड़े बैंकों का एक अपर हैंड जहाँ पर था. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ज़्यादा बड़ी ब्रांच नेटवर्क है, इसलिए मैं ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकता हूँ, राइट? वो आपने एडवांटेज ले लिया है बाय गोइंग टूवर्ड्स ब्रांचलेस बैंकिंग एंड डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन. उसी तरह से प्रॉफिट पूल की जब आप बात करते हैं, दैट हैज़ बीन डिसलोकेटेड एज वेल एंड विल कंटिन्यू टू. पेमेंट्स के ऊपर आपने कहा कि यार अगर मैं अकाउंट टू अकाउंट इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो इंटरचेंज फीस हो रही होती है एक्सेट्रा, वो अब नहीं होगी. तो अगर जो बैंक, अगर आप उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखें एज इक्विटी एनालिस्ट, अगर वो पेमेंट्स से आ रहा है तो वहाँ पर जनाब उनका ख़त्म हो गया, राइट? सो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, right, in that business, or should I be investing in a new business model now? So the business model is evolving, and that is in itself a direct threat to the incumbent business models, I would say. थैंक यू. देखिए, मैं कुछ अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पसंद नहीं है, जैसे थ्रेट. आई थिंक थ्रेट का लफ्ज़ हम ना यूज़ करें, क्योंकि अगर थ्रेट किसी को होना चाहिए तो वो कैश को, वो इलीगल इकोनॉमी को थ्रेट होना चाहिए. तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट डिजिटल बैंक्स टू डू इज टू, नंबर वन, कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर को रीजन दे, सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग फॉर्मल सिस्टम्स. पहली बात तो ये है. दूसरी चीज, व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड वी होप इज कि आपको कस्टमर सर्विस बढ़ानी पड़ेगी, कस्टमर सर्विस के लेवल्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा. पाकिस्तान में, एंड आई फ्रीली टेक द नेम, अगर फॉर एग्जांपल इजी पैसा की हम बात करें, इजी पैसा क्यों कामयाब हुआ? मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये थी कि उसने हर गली मोहल्ले में एक दुकान खोल दी, और जहां पर कस्टमर की हैंड होल्डिंग के लिए कोई बंदा बैठा था जो उसको बात कर रहा था. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं इस नज़रिए से इख्तिलाफ करूंगा कि एक ऐप बनेगी और लोग वो ऐप एकदम डाउनलोड करने लगेंगे और एकदम डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगी. मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा. कामयाब वही बैंक होगा, या चाहे वो डिजिटल हो या नॉन डिजिटल, जो इस स्पेस में आगे जाएगा और कस्टमर की हैंड होल्डिंग करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको सर्विस देगा जाकर. एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि 2 या 3 ट्रांजैक्शंस करके दे, उसके बाद फिर कस्टमर अपना काम शुरू करे. तो मेरे ख्याल में थ्रेट की बात थोड़ा सेकेंडरी है. वी होप कि जो डिजिटल बैंक्स हैं वो कस्टमर को इनोवेटिव सर्विसेज देंगे. अनएड्रेस सेगमेंट्स जो एसएमईज फॉर एग्जांपल, एग्री है, एसएमईज है, वुमेन है, जो ये वो एरियाज हैं जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, जिनको हाई रिस्क समझते हैं आम बैंक्स, उनको सपोर्ट करेंगे और जाकर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू करेंगे जो पैसा रियल एस्टेट से निकल के में भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में आना शुरू होगा. वो कामयाब होगा. जब ये चीज सामने आनी शुरू होगी तब बैंक्स को थ्रेट होना शुरू होगा, क्योंकि बैंक्स के लिए तो बहुत आसान है ना, वो आपसे डिपॉजिट लेते हैं और उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देते हैं और फिर वो आराम से पैसे बना रहे हैं. दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ठीक है ना? तो कस्टमर्स को कौन सर्विस देगा, इन्वेस्ट कौन करेगा सिस्टम्स में? जो करेगा फिर वो ऑफ कोर्स कंपटीशन विल ड्राइव. ये हमारा व्यू है स्टेट बैंक में और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है विद द डिजिटल बैंक्स.
Thank you, sir. My question now is with regards to data. So data is the new oil and data is the gold, new gold. So these are the terms, and Asher mentioned that this is where the banking focus and the financial system evolution is. Now, is it in the context of Pakistan, where the economy is not very integrated, even the financial system lacks integration. So banks, the existing banks do not share or are not very open to data sharing. Now, how the system can evolve in Pakistan, I mean, in terms of, so I'll talk about the lending product. So we are talking about that new banks will come in and they will start lending to the new customer or unbanked customer. Now, these digital banks rely heavily on data availability. These customers, a large population, is not part of formal financial system, right? So they may have social media presence, they may have indirect cash handling with the utility companies. Now, how does this change the picture for you in Pakistan while comparing with the rest of the world? Maybe data integration, and people are really connected to the system, so there is a credit scoring system as well. So how do you see Pakistan's economy in that? So I can just try to take again my point of view. मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त कंपनीज हैं मार्केट में जो कि आपके सिर्फ टेलीकॉम डेटा के ऊपर यूसेज ऑफ टेलीफोन द स्पेंडिंग बिहेवियर देयर के ऊपर असेस करने में बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हैं कि इस शख्स को मुझे एक माइक्रो लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट? बल्कि अफ्रीका में, केनिया वगैरह में तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक फिनटेक है जो कि लोगों को मोबाइल डिवाइसेस देता है, राइट? और उसके बेसिस के ऊपर उनकी स्पेंडिंग उनकी जो यूसेज हैबिट्स को देखकर वो असेस करता है कि यार ये 20 तारीख को इसका पैसा ख़त्म हो जाएगा या इसका जनाब बजट अपना इसको मैनेज करना आता है, और उस बेसिस के ऊपर अब वो क्रेडिट प्रोफाइलिंग अपना कर रहे हैं. तो अगेन कोई भी एक बिग बैंक के तौर पर चेंज नहीं होगा, बट आई थिंक देयर इज इनफ डेटा आउट देयर. फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इज़ वन एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल करीम, राइट, और राइट शेयरिंग एंटिटीज़ फॉर दैट मैटर इज़ वन एस्पेक्ट. सो देर आर अ नंबर ऑफ. अच्छा, मज़े की बात है कि जो मुझे समझ आए, बिग डेटा वगैरह सब बेकार बातें. बेसिकली बेसिक डेटा को उठाकर आप कहते हैं कि यार इस बेसिस के ऊपर मेरा क्या ख्याल है कि ये बंदा किस पीयर ग्रुप में शामिल है, उनके क्या जनाब वो स्पेंडिंग हैबिट, क्रेडिट प्रोफाइल वगैरह होगा, उस बेसिस पर आप स्टार्ट करते हैं. स्काई इज द लिमिट. So now questions are being populated on the app as well. So I'll just repeat, you can visit slide.do and event code is #CFA. So I'll just ask a few questions. The first question is about so the role of existing banks, right? So regulator, we have seen, has introduced a lot of initiatives, right, in terms of increasing financial inclusion. How effective you think you have been? What's your vision? And how has been the role of existing large commercial banks or the existing formal system? How open you have found them in adopting those and really propagating on that? तो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है, मुझे एग्जैक्ट तो शेर याद नहीं, मगर कुछ इस तरह से है कि इलाही क्या माजरा है ये, कि ये क्या असेबी माजरा है कि सफ़र है तेज़तर और रफ्तार है आहिस्ता. तो एक असेबी माजरा नज़र आता है बैंक्स में. असेबी आप समझते हैं ना, इट्स लाइक एक इनर्शिया है. और आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि बैंक्स are reluctant to change and they are reluctant to again to reach out to the customer और उसको जाकर देखें. स्टेट बैंक ने ठीक है बहुत सारा काम किया, और लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर तो लिटरली हम जाके उनके बोर्ड रूम्स में बैठ गए कि जी आपने ये काम करना है, आपने ये सिस्टम्स बनाने हैं. आपने कोविड में देखी, उसके बाद आपने हाउसिंग के ऊपर देखा, और उसके बाद आपने वुमेन के ऊपर देखा, और डिजिटाइजेशन के ऊपर देखा, और ये हमने उनको दिया है, काफ़ी प्रेशराइज किया है. लेकिन उसके अलावा आई थिंक लेट्स बी फेयर टू देम. थोड़ा सा बैंक्स को भी हम ये हों कि उनके पास भी लिमिटेशंस हैं. नंबर 1 लिमिटेशन इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ये एक मेजर चैलेंज बहरहाल बैंक्स के पास है, और अभी हो रही थी लास्ट उसमें भी
वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी भी वहाँ पर फी इनकम और इंटरेस्ट बेस इनकम और ये इनकम्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उससे बाहर निकालें, क्योंकि दैट मेक्स banking very expensive and unreachable for the customer, and that's where data plays a very important role. कि data आता है और उस data की insight से if you are able to change your business models in a way कि customer की cost कम हो जाए, उसकी जो उसने पैसे देने हैं वो कम हो जाए और उसके बदले कस्टमर को फैसिलिटेशन ज़्यादा मिले, तो ऑफ कोर्स वो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन का, yes, despite all that, banks are changing, but the speed of change is very, very slow. So one question from the audience about the conversion or transformation of conventional banks to actually the opportunity. So, Ashar, in your experience, any examples you can share where really conventional banks have transformed themselves up to this challenge? जी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट एग्जांपल्स यू नो एंड इट्स नॉट इजी. लेट्स बी रियल एज वेल, राइट? आई मीन मैं एक बोर्ड की एक सेशन कर रहा था. उन्होंने कहा कि अशर ये बताओ, बड़ी आसानी से ये सब बोल दिया तुमने. नाउ यू टेल अस कि आर यू आस्किंग अस टू राइट ऑफ दिस 150 million USD दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर सिस्टम्स ओवर द इयर्स. You are saying write it off and start again. Is that what I'm supposed to go back and tell my chairman or my shareholders? Right? It's not an easy answer. It's a $150 million answer. तो उनके लिए आसान नहीं है. बैंक्स क्या कर रहे हैं? बैंक्स 2 या 3 तरीकों से काम कर रहे हैं. इस एक रिस्क अवर स्ट्रैटेजी ये है. उनका ये इतना बड़ा एलिफेंट ओवरनाइट चेंज करना मुश्किल नहीं है. तो अब ब्रांड विद इन अ बैंक लॉन्च हो रहा है, जिसको एक आर्म्स लेंथ पे रख रहे हैं, बल्कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हैं, ताकि वो कंटेमिनेट ना हो बैंक के एग्जिस्टिंग कल्चर से. वो कह रहे हैं कि वी विल नॉट टेक अ बिग बैंग अप्रोच, विल स्टार्ट स्मॉल, विल कीप इट आउटसाइड. RFP वगैरह का चक्कर ही नहीं होगा कि 3 RFP और 6 महीने का प्रोसेस एक्सेट्रा. कि हमें पता, तो हमने बैंकों को देखा है जो ब्रांड विद इन अ बैंक एक रिस्क अवर स्ट्रेटजी के तौर पे बड़े अच्छे से लॉन्च कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि ठीक है, एंड देन लेटर ऑन वी कैन मर्ज विद द बिगर बैंक. देखते हैं कैसे होता है. अच्छा, दूसरे हैं जिन्होंने बिग बैंक किया. उन्होंने कहा कि जी हम बड़े बड़े बजट्स एलोकेट करेंगे, ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे. दे आर हैविंग ऑफ. और तीसरा वर्जन ये है कि बड़े बैंकों में वो कह रहे हैं कि यार ओके, छोटे छोटे और उनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिसरप्ट करना शुरू करो. इवन अगर मैं अपना कैनिबलाइज भी कर रहा हूं बैंकिंग बिजनेस, तो सही है. लेकिन उसमें हमने देखा कि सक्सेस वहां पर होती है जहां पर, एंड दिस इज अ ह्यूज एरिया, एंड अगेन लुक एट द सिंप्लिसिटी, जहां पे स्पॉन्सरशिप CEO से डायरेक्टली हो. एवरी बैंक वेयर वी हैव सीन कि CEO की स्पॉन्सरशिप नहीं है, डजंट मैटर हु इट इज, मतलब कि वो फेल हुआ है या डिले हुआ है, वो नहीं. जहां हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एक्सेस टू CEO है, वो हर 2 हफ्ते के ऊपर स्टीयरिंग कॉम की मीटिंग कॉल कर रहा है, वो बड़े खुल कर रहा है, वन टीम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है एक्सेट्रा. वहां हमने देखा है कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए. As we have Visa and MasterCard in the cards payment, are we going to have any foreign digitization of payments in Pakistan? Anything in the offing, sir? Yes, there are a number of, अभी जो नई फिनटेक्स आ रही हैं उनके कई जो स्पॉन्सर्स हैं वो फॉरेन हैं, और कुछ फॉरेन एंटिटीज़ भी यहाँ इंटरेस्टेड हैं. तो हमारी पूरी रेगुलेटरी स्पेस अवेलेबल है. पीपल आर फ्री टू कम एंड ऑफर देयर सर्विसेज. नो, कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास से नहीं है. तो बिल्कुल उस पर एक्टिविटी है और उस पर काम हो रहा है. Okay, so one question is Rast, which so the question is that Rast is cannibalizing banking applications. I think yes, if it's an alternative to IBFT where banks are charging a fee and Rast is free, so this is really a cannibalization. But how do you really see it? नहीं, कैनिबलाइजेशन मैं समझा नहीं कि आप कह रहे हैं कि एप्स की कैनिबलाइजेशन हो रही है. जी, alternate revenue streams, or by using Rast as a payment transfer mechanism, right? So banks would be ऑफ right of the कोर्स fee. देखिए, वो बैंक्स का मैंने भी जो बात की थी रेवेन्यू वाली भी, वो इसीलिए की थी कि बहरहाल बैंक्स विल हैव टू लूज सम मनी देयर. हमें ये कोविड के दौरान पता चल गया कि बहरहाल प्राइस डज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अडॉप्शन, और रास को फ्री इसीलिए रखा है कि वो करे. उसको मैं कैनिबलाइज तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर. जैसे मैंने बात की कि रिक्वेस्ट टू पे आ रहा है, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को आप ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो अभी नहीं है. इसके अलावा आप नए कस्टमर्स को जाएं. अभी भी बैंक्स जो हैं वही
15%, 20%, उनमें से बेचारे 5-6% होंगे जिनको कोई सही सर्विस मिलती है। थोड़ा उनको अप्रोच करें, रीच आउट करें। और हमारा ये जो जो हाइपोथेसिस है वो ये कि रास की वजह से बैंकों के डिपॉजिट्स विल एक्चुअली इंक्रीज। जो आप बात करें ना सीआईसी के कम होने की, करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगी तो बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। इस पर मैं ऐड करूंगा कि डेफिनेटली ये तकलीफ समझ तो आती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री डूइंग दिस। तो सऊदी में मदा उनका पेमेंट सिस्टम है, वो भी यही करता है कि फ्री। हम लोग समझ शुरू में नहीं कैसे यार फ्री, मतलब बाकी जीसीसी में नहीं है, सऊदी में है। दे आर फोर्सिंग द बैंक्स टू, भाई ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर के ऊपर नहीं बैठे रहो कि जनाब हम इनकम्बेंट है वैसे ही कमाएंगे, राइट। दूसरी चीज़ मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सऊदी में मेरे कुछ बोर्ड मेंबर्स से, बड़े सीनियर लोगों से बातचीत हो रही थी। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक सबसे बेहतरीन रिसेशन जो लिया वो 1970s में, जब हमारे पास बड़ा प्रेशर था अमेरिका की तरफ से कि तुम इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम हमारा उठा के ले लो। हमने कहा नहीं जी, हम अपना लोकल यानी इंडिजिनस सिस्टम बनाएंगे और उसको रन करेंगे। और आज यूक्रेन रशिया इंसिडेंट की वजह से ये मजीद उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है इस्टेब्लिश हो गई है कि ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह बेकार चीज़ है। यू शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डीकपल योर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, वरना वही होगा कि वन स्विच ऑफ अ बटन से स्विफ्ट बंद हो सकता है। राइट और रॉन्ग का अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन डू यू वांट टू गिव योर लाइफलाइन टू समवन एल्स? तो इस वक्त बोर्ड लेवल पे ये बात हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक टेक एसेट्स को हम ऑनशोर कैसे लेकर आएं। और यस वी विल बी लिंक टू इंटरनेशनल, लेकिन डीकपल होने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। Okay, so one user has asked about, you mentioned about the valuation potential and how market is really appreciating the overall environment. But the recent drop in the financial markets where fintech valuations have really tanked. So does it really reflect the gloom? The profitability isn't there. The overall promising outlook, is it really going to reflect in the valuations going forward? And again, related to it would be the investments and capex commitments towards it. ये सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, राइट। लेकिन डेफिनेटली वैल्यूएशन ड्रॉप हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं क्योंकि अगेन बहुत ही हीट अप थी मार्केट, और कोई ऐसा जो है फंडामेंटल बिजनेस मॉडल बहुत जगहों पे नहीं था। तो अगेन टेक और ऐप, जैसे पहले भी कहा, इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ वायबल बिजनेस मॉडल। और उसके अंदर जैसे हमने कहा प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट बट स्टिल नॉट, मतलब रिस्क कैपिटल की एपिटाइट यूरोपियन मार्केट्स में, साउथ ईस्ट एशिया में बहरहाल ज्यादा है। तो दे आर नॉट हंग अप ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बट स्टिल दे वांट टू सी अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, किसको तुम कैसे काम करोगे। हाँ, ग्रैब की वैल्यूएशन $30 बिलियन का आईपीओ हुआ, आज वो जनाब वो गिरकर जो आधा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, राइट, या उससे भी कम हुआ है। तो वो सोचने की बात यह है कि हम कहीं एक्सूबरेंस में कैरिड अवे तो नहीं हो गए थे। सो I think the direction will remain the same, लेकिन sanity will prevail. Some sanity will kick in. Okay, let's take the question from the audience. Sir, please go ahead. Please introduce yourself and then ask the question. I am Tahir Sheikh, a financial services professional. I would like the panel, thank you very much for a very informed discussion, to touch on 4 aspects primarily a little bit. One is regarding, I think we didn't have much discussion on adoption and profitability. अगर आप पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त around 50 odd million bank accounts हैं. I mean, they are not all active, but there are. अगर आप ये देखें कि जी हमारी इंटरनेट के यूजर्स बेस जो है around 34 million primarily 17% of the population है. So again, and then you filter that out कि उसमें से कितने स्मार्टफोन के साथ हैं, कितना है. So all that hoo-ha in this is in the larger scheme of things. And when you talk about expanding the boundary कि जी आप new users को on board करें और ये करें, so then the question arises is what is the lifetime value of the customer, right? So I can go reach out to a lot of non-bank population, but what kind of revenue stream over the next 10 years that person or entity, whatever, that micro enterprise is going to give, and then how do I remain profitable? So this is one area when I want to touch adoption and profitability. Then it becomes a question of trust. That is a second area I want request the panel to touch. Because अगर आप देखें कि जी I have an Habib Bank account I opened when I was a child in 1988, अभी तक चल रहा है, reliable there, bank is here to stay, one of the 4 big banks. Now you open a digital account with a new fintech, 5 साल बाद
वो किससे मर्ज हो जाएगी, will it be there, what kind of deposit protection, for example, just very basic, is my money going to be there, what is State Bank doing on it, right? So fintech's की reliability, how do you create a brand if you are an independent fintech versus you already have a brand and you expect, and that especially a request for you to Ashir to touch upon, because you can come in as an outside in and then you look at. So that's the second aspect. First, the profitability and adoption. Second is the trust part. The third one I would request the panel to ask is the consumer protection. There is a lot of talk about account to account transfer. लेकिन मैंने जब फर्ज करें मैं इन साहब के साथ डील कर रहा हूँ, मेरे पैसे इनके अकाउंट में चले गए, then the money is gone. It's P2P, right? If I use a credit card, of course we want, many countries are embarking on policies कि जी you want to have household credit card debt, उसकी वजह से you want to limit the credit card adoption, but उसमें एक inherent protections होती हैं कि जी अगर मैंने वो चीज़ ली या किसी ने overcharge कर दिया, then I have the ability to challenge, I can get my money refunded. So those P2P and account to account things become an issue and that is a barrier. Or again, Pakistan mein jaise like a few days ago, given that we have this foreign exchange situation, I wanted to buy an app purchase on iPhone और मुझे बैंक ने कहा HBL ने, in fact I can name the bank, कि जी वो सेंट्रल बैंक की तरफ से है कि जी अब वो जो आप 24 hours के लिए खोल देते थे नहीं है ये, उसमें वो देखते हैं हम एप्पल पे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस किस्म की, right? So that becomes in, and that so the cyber security part, the consumer protection part is again that is the thing. And lastly, again, I think there was a touching here on on the decoupling part. I think that is an underemphasized part in R8, because अगर आप ये देखें, if you look at in last couple of years, I think MasterCard is replacing almost Visa in every bank, right? I mean, so you would know that, right? So then the question arises is if MasterCard switches off, right? And I mean, elsewhere, Malaysia, they have their local system. I've worked there for many years. Pakistan, you rightly pointed out, PayPack should be much more adopted, right? ये है. So to sum up, I would request the panel to comment on the adoption profitability and then the trust part, the cyber security and consumer protection part, and again in the national part. Thank you very much. I know it's a mouthful of questions, but really wanted to advise on this. Yeah, thanks. Right. So let me try to address them in a crisp manner. Adoption and profitability. अच्छा, उसका देखिए design principle क्या है? Design principle ये है कि digital जादू की छड़ी नहीं है. Right, and just because I say digital and I say come up with a nice app, people will not start running behind me, etc. एक sustainable business model होना चाहिए. और adoption and profitability की जब आप बात आती है, तो एक slide पे मैंने बताया था. Maybe the question is कि look at the sponsorship model. क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है. अगर एक startup sponsor start कर रहा है zero से customer को build करना, customer base को, तो yes, I mean that point of inflection कब आएगा, क्या scale होगा, is a big question mark. And in the international market, what you're seeing is profitability. अच्छा, Pakistan की market is also probably not as blind around, कि part to profitability नहीं है और फिर भी वो आपको valuation दबा के देते रहेंगे. ऐसा नहीं होगा. So maybe the answer is that we need to look at the sponsorship model of these challenger banks that need to be a consortium approach that bring a captive customer base on day zero, and they're trying to solve a certain problem rather than saying I've got a nice app and therefore I'll be very successful. So I take your point on that. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से हमें इन चैलेंजर बैंक्स का स्पॉन्सरशिप मॉडल एक प्रॉपर कंस्ट्रक्ट देखनी पड़ेगी उसकी. ओपन बैंकिंग की यूज़र अडॉप्शन बहुत स्लो होगी, राइट, फॉर श्योर. एक नई चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता होगा. तो अगेन कोई जादू की छड़ी नहीं है, एंड यू गॉट टू बी रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्ले. दूसरा, ट्रस्ट की जब आप बात करते हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देन आई गो बैक अ लेवल बिलो व्हाट यू आर सेइंग. ट्रस्ट किस चीज़ का? आज पाकिस्तान में लेंडिंग बिजनेस है ही नहीं, राइट? तो अगर आप एज अ फिनटेक एक लेंडिंग बिजनेस में आते हैं, यू आर सॉल्विंग अ सर्टन पेन पॉइंट एग्री का या एसएमई का थ्रू बेटर प्रोफाइलिंग, फ्री कैश नहीं, चैरिटी कैश नहीं, तो हु विल माइंड, राइट? मेरे पास तो ऑप्शन है ही नहीं ना. तो आज अगर आप मुझे ऑप्शन, तो यू हैव टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम. आई फुली अग्री विथ यू कि इफ यू आर गोइंग आफ्टर द सेम घिसा पिटा चीज़ कि यार डिपॉजिट फ्रेंचाइज में कैसे बिल्ड करूंगा, सो हेल नो, यू वोंट बी एबल टू कम्पीट विद द इनकम्बेंट्स. माई व्यू इज on day zero unless you've got a very powerful differentiated proposition, right? So trust factor बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वो incumbents के ऊपर है,
and therefore you need to be solving a real problem, a pain point, if you want to succeed. And इसीलिए मैं कहूँगा बल्कि the likes of Retailo, Kareem's, Airlifts, all the लेकिन ये सब एक real business provide कर रहे हैं और financial जो है वो उनके उस पे embedded है. And these guys are the future, जिनके पास better chance है to be the banks of the future, right? Rather than being a standalone bank, I would say, जो कह रहा है मेरे पास चूंकि मैं बैंक हूँ. आज जो ये ride hailing companies हैं, big chunk of their business comes from payments, right? They are a ride hailing company, right? So makes us think कि जनाब की ये जो trust factor है उसको किस तरह से ये address कर रहे हैं. On the consumer protection side, I'll just quote an example कि सऊदी में literally 2 weeks ago EKYC customer acquisition की वजह digital acquisition की वजह से cyber crimes में ज़बरदस्त इजाफा हुआ. ठीक ठाक हैकिंग शैकिंग शुरू हो गई, राइट? सामान्य knee jerk reaction, circular आ गया, stop everything, all new customer onboarding. Imagine Saudi, सब हैरान लगे था. नंबर 1, कोई न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग नहीं होगी डिजिटल ब्रांच में, बैक टू ब्रांचेस. 1 सेकंड, उनका सेटलमेंट विल नॉट बी इन रियल टाइम, राइट? और उसको होल्ड करो एक्सेट्रा, राइट? एक सर्कुलर आ गया. अब उन्होंने कहा कि यार जबरदस्त, अब तो बिजनेस बहुत आएगा, मतलब कि दोबारा पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. विद इन 48 आवर्स रॉयल कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, प्रेशर आया, उन्होंने गए रॉन्ग थिंकिंग, so we cannot get rid of this cyber crime, right? We just need to stay ahead. You come up with mechanism instead of stopping this. You come up with mechanism to actually lower this risk. It's not a matter of if you will get hacked. It's a matter of when you will get hacked. Okay, so my point is कि regulators बड़ा एक leap of faith ले रहे हैं जो पहले नहीं देखा गया था. Central Bank Bahrain के गवर्नर ने on record multiple times he's there कि guy incumbent banks को अगर तुम लोग लेकर नहीं आओगे, I am going to open this sector for everyone out there. I'll take that risk. मुझे पता है कि सिस्टम पे क्या छोड़ा, I am willing to take that risk rather than bear this inertia, right? So again a different perspective on that. And decoupling के ऊपर ये है कि वो तो देखें there are different ways of doing it. मेरा ख्याल है मास्टर कार्ड वीज़ा का इस वक्त कोई ऑल्टरनेट इतना कोई पावरफुल तो है नहीं मार्केट में, बहुत सारे कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं. सो आई डू नॉट हैव दैट आंसर सवाए इसके कि किस तरह से आप ऑन शोर ला सकते हैं उनका सारा डेटा वगैरह जो भी है, या यू कैन एक्सरसाइज अ बिगर इन्फ्लुएंस ऑन दैट. देखिए, जो आपने सवाल पूछा P2P और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो ये जो पूरी स्पेस है ये पेमेंट स्कीम्स की स्पेस कहलाती है. तो वीज़ा और मास्टर कार्ड और पेपाक ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, इनके साथ पूरे लाइबिलिटी के फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, इनके साथ डिस्चार्ज बैक के फ्रेमवर्क्स हैं. यानी अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो कैसे वो इन्वेस्टिगेट होगा, किस तरह से उसको देखा जाएगा, कैसे वापस होगा. इवन आज भी अगर लोगों के साथ यहाँ पाकिस्तान में ऑनलाइन अगर फ्रॉड हो जाता है, या अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है, या कोई अभी तक साइबर अटैक में कोई फंड्स नहीं लूज़ हुए हैं पाकिस्तानी बैंक्स के पास से, ऑनलाइन फ्रॉड्स में होते रहते हैं, लेकिन इन सारों के पीछे एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है, रेगुलेटर होता है और उसकी रूल्स होती हैं, स्कीम रूल्स होती हैं, जिसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस जहां ये इस्टेब्लिश ना हो कि ये कस्टमर खुद फ्रॉड में शामिल था, वहां पर उसको उसके पैसे वापस मिल जाते हैं. तो दैट्स ये वो बात है जो लोगों को समझनी चाहिए कि कैश यूज़ करने में और एक अकाउंट को यूज़ करने में बहरहाल उनको ये फ़ायदा तो है. अब जहाँ तक बात आपने कही, वो एक आपने बात की कि हबीब बैंक कहता है कि फ़ोन करके कार्ड खुलवाना पड़ता है. कि हमने ये देखा है कि ऑनलाइन जो स्किमिंग होती है, ऑनलाइन यानी कि आपकी किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ से आपके क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट हुए और वो इस्तेमाल हुआ किसी ट्रांजैक्शन में, वो ऑलमोस्ट 100% बाहर से होती है. ऑलमोस्ट 100% कह रहा हूँ मैं, ये बाहर से होती है. बाहर के किसी, आप उस पर गए, आपने अमेज़न पे कोई ख़रीदारी की, आपने माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ लिया, गूगल पे कुछ लिया, क्योंकि ये इतने बड़े मर्चेंट्स हैं कि इन्होंने किसी किस्म की 3D सिक्योर या इस किस्म की चीज़ें नहीं लगाई हुई. और अगर वहाँ से किसी के क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत 100% वो पैसे वापस आ जाते हैं. वो स्कीम अपने पास से वो पैसे वापस कर देती है. जो P2P की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी को पैसे कैश पकड़ा दिया, तो इसी तरह आपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया और एज़ पर दी लॉ आपने डिजिटली किसी को फ़ंड दे दिया P2P का, तो वो इर्रिवोकेबल है, वो आप दे दें जब तक कि सामने वाला आपको वापस ना करे. बट दैट्स नॉट द केस विद P2M, जो मर्चेंट की ट्रांजेक्शन है, वहाँ चार्ज बैक का मैकेनिज्म है. इसीलिए रास्त में हमने P2P किया और इस साल हम
P2M कर रहे हैं, मर्चेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ एडिशनल फील्ड्स ट्रैवल करेंगी जो कि इस पूरे फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर रही होंगी, स्कीम रूल्स होंगे और ये सारा कुछ होगा। तो आप ये बात बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा सा, मेरे दोस्त वीज़ा और मास्टर में नाराज़ हो जाते हैं ये बात सुन के, लेकिन बहरहाल हमारी कंट्री को और किसी भी कंट्री को बाहर से रिस्क ज़्यादा है, जो है साइबर अटैक्स का, अनऑथराइज एक्सेस का, और वो बहरहाल वहाँ से चैलेंजेस आए हैं। माजी में भी कुछ ऐसे हमारे इंडस्ट्री में वाक़यात हुए, मिडल ईस्ट के बैंक्स के साथ हुए, ग्लोबल होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं जो इन्होंने भी बात की कि डिजिटल का मतलब होगा इट्स लाइक अ हनी पॉट, यानी साइबर तो अटैक होंगे, लोग तो आएंगे और वो ट्रैक करेंगे। जब आपको, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब बैंक ऑफ अमेरिका ने 50s में, आई डोंट नो, उस वक्त फ्रेस्नो के एरिया में उन्होंने अपने बैंक ऑफ अमेरिका के लाखों कार्ड लोगों के घरों पे मेल ऑर्डर में डाल दिए, तो कई साल तक उनको फ्रॉड्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड हुआ उनको। और एट वन पॉइंट इन टाइम उनकी मैनेजमेंट ने कहा कि बंद कर दो, ये कार्ड का तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि नया काम था ना, डाइनर्स और ये सारे ये करते थे कार्ड का काम। बेसिकली मर्चेंट्स ने ये कार्ड्स का काम शुरू किया था, क्योंकि मर्चेंट्स को ये बात समझ में आ गई थी कि ग्रॉसरी स्टोर क्रेडिट की वजह से सेल्स बढ़ती है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्ड का और ये सारा फ्रेमवर्क यूज़ किया। तो इनिशियल ईयर्स में दे फेस्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉसेस, इन फ्रॉड्स। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, इसको चलने दें हम। और आज आप देखें कि दे आर लाइक $multi-billion जो उनके रेवेन्यूज है वो है। तो ये होगा, और उसके लिए जो तरीक़ेकार है वो यही है कि बैंक्स को उसमें डिवाइस करना पड़ेगा, कोई फंड बनाना पड़ेगा और उसमें अपनी एलोकेशंस करनी पड़ेंगी ताकि कस्टमर का लॉस ना हो। Financial sector, we have seen Pakistani market. My question is again, what we really think about when we talk about digital banking is it really going to threat Pakistani banking sector? Now, Pakistan is a market seeing progress on transaction economy. So yes, transactions are now digitized. Then in the second step, so we saw first Easy Paisa, who really digitize the transactions, and people started sending money and using the digital channels. Then we saw transactions happening, and now people started using mobile wallets, and the landscape was evolving. We have recently started seeing, smaller institutions coming with lending products. But is it going to really change in a big manner? I mean, the existing banks with huge deposits, that's the conventional business model that we used to know. So there is bank deposit, you earn, so you pay smaller cost to the deposit holders, you lend it at a higher spread. And along with that, you service the customer and earn fee. So that's how the banking business model is. So how is it going to change Pakistan's economy in the context of our economic dynamics? So I will request Ashar Saab and then probably Sahil Saab as well to see to add how he is going to see the change in the future. जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देयर आर टू पार्ट्स टू इट। आई थिंक challenger banks or new banks will not be a direct or a near-term threat to existing incumbents जिनके पास जिनकी रीच, उनका साइज काफ़ी बड़ा है, राइट? एट लीस्ट नॉट इन द नियर टर्म। प्लस ये कि पाकिस्तान के साथ ने कहा कि देयर इज सो मच स्कोप कि इफ दे गो फॉर डिजिटल savvy और द unbanked और unhappily banked और underbanked segment, तो देयर इज इनफ स्पेस देयर। मेरा ख्याल है जो इमीडिएट थ्रेट है बैंक्स को वो है फ्रॉम द चेंजिंग बिजनेस मॉडल दैट विल बी ड्रिवन बाय कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड बाय रेगुलेशंस एज वेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गेटिंग कमोडिटाइज, जो कि बड़े बैंकों का एक अपर हैंड जहाँ पर था। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास ज़्यादा बड़ी ब्रांच नेटवर्क है, इसलिए मैं ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकता हूँ, राइट? वो आपने एडवांटेज ले लिया है बाय गोइंग टूवर्ड्स ब्रांचलेस बैंकिंग एंड डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन। उसी तरह से प्रॉफिट पूल की जब आप बात करते हैं, दैट हैज बीन डिसलोकेटेड एज वेल एंड विल कंटिन्यू टू गेट डिसलोकेटेड एज वी मूव फॉरवर्ड, राइट? अ न्यू बिजनेस मॉडल इज इवॉल्विंग। एग्जांपल, पेमेंट्स के ऊपर आपने कहा कि यार अगर मैं अकाउंट टू अकाउंट इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो इंटरचेंज फीस हो रही होती है एक्सेट्रा वो अब नहीं होगी। तो अगर जो बैंक, अगर आप उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखें एज इक्विटी एनालिस्ट, अगर वो पेमेंट्स से आ रहा है तो वहाँ पर जनाब उनका खत्म हो गया, राइट? सो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट,
right, in that business? Or should I be investing in a new business model now? So the business model is evolving, and that is in itself a direct threat to the incumbent business models, I would say. थैंक यू. देखिए, मैं कुछ अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पसंद नहीं, जैसे थ्रेट. आई थिंक थ्रेट का लफ्ज़ हम ना यूज़ करें, क्योंकि अगर थ्रेट किसी को होना चाहिए तो वो कैश को, वो इलीगल इकोनॉमी को थ्रेट होना चाहिए. तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट डिजिटल बैंक्स टू डू इज टू, नंबर वन, कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर को रीजन दे, सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग फॉर्मल सिस्टम्स. पहली बात तो ये है. दूसरी चीज़, व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड वी होप इज कि आपको कस्टमर सर्विस बढ़ानी पड़ेगी, कस्टमर सर्विस के लेवल्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा. पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल इजी पैसा की हम बात करें, इजी पैसा क्यों कामयाब हुआ? मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये थी कि उसने हर गली महल्ले में एक दुकान खोल दी, और जहां पर कस्टमर की हैंड होल्डिंग के लिए कोई बंदा बैठा था जो उसको बात कर रहा था. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं इस नज़रिए से इख्तिलाफ करूंगा कि एक ऐप बनेगी और लोग वो ऐप एकदम डाउनलोड करने लगेंगे और एकदम डिजिटल ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगी. मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा. कामयाब वही बैंक होगा, या चाहे वो डिजिटल हो या नॉन डिजिटल, जो इस स्पेस में आगे जाएगा और कस्टमर की हैंड होल्डिंग करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको सर्विस देगा जाकर. एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि 2 या 3 ट्रांजेक्शन्स करके दे, उसके बाद फिर कस्टमर अपना काम शुरू करे. तो मेरे ख्याल में थ्रेट की बात थोड़ा सेकेंडरी है. वी होप कि जो डिजिटल बैंक्स हैं वो कस्टमर को इनोवेटिव सर्विसेज देंगे. अनएड्रेस सेगमेंट्स जो एसएमईज फॉर एग्जांपल, एग्री है, एसएमईज है, वुमेन है, जी ये वो एरियाज हैं जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, जिनको हाई रिस्क समझते हैं आम बैंक्स, उनको सपोर्ट करेंगे और जाकर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू करेंगे जो पैसा रियल एस्टेट से निकल के में भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में आना शुरू होगा. वो कामयाब होगा. जब ये चीज़ सामने आनी शुरू होगी तब बैंक्स को थ्रेट होना शुरू होगा, क्योंकि बैंक्स के लिए तो बहुत आसान है ना, वो आपसे डिपॉजिट लेते हैं और उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देते हैं और फिर वो आराम से पैसे बना रहे हैं. दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ठीक है ना. तो कस्टमर्स को कौन सर्विस देगा, इन्वेस्ट कौन करेगा सिस्टम्स में, जो करेगा फिर वो ऑफ कोर्स कंपटीशन विल ड्राइव. ये हमारा व्यू है स्टेट बैंक में और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है विद द डिजिटल बैंक्स. Thank you, sir. My question now is with regards to data. So data is the new oil, and data is the gold, new gold. So these are the terms, and Ashar mentioned that this is where the banking focus and the financial system evolution is. Now, is it in the context of Pakistan, where the economy is not very integrated, even the financial system lacks integration? So banks, the existing banks do not share, are not very open to data sharing. Now, how the system can evolve in Pakistan? I mean, in terms of so I'll talk about the lending product. So we are talking about that new banks will come in and they will start lending to the new customer or unbanked customer. Now, these digital banks rely heavily on data availability. These customers, a large population, is not part of formal financial system, right? So they may have social media presence, they may have indirect cash handling with the utility companies. Now, how does this change the picture for you in Pakistan while comparing with the rest of the world, where maybe data integration and people are really connected to the system, so there is a credit scoring system as well. So how do you see Pakistan's economy in that? So I can just try to take again my point of view. मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त कंपनीज हैं मार्केट में जो कि आपके सिर्फ टेलीकॉम डेटा के ऊपर, यूसेज ऑफ टेलीफोन, द स्पेंडिंग बिहेवियर देयर के ऊपर असेस करने में बड़ा ज़बरदस्त कामयाब है कि इस शख्स को मुझे एक माइक्रो लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट. बल्कि अफ्रीका में, केनिया वगैरह में तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक फिनटेक है जो कि लोगों को मोबाइल डिवाइसेस देता है, राइट. और उसके बेसिस के ऊपर उनकी स्पेंडिंग हैबिट और उनकी जो यूसेज हैबिट्स को देखकर
वो असेस करता है कि यार ये 20 तारीख को इसका पैसा खत्म हो जाएगा या इसका जनाब बजट अपना इसको मैनेज करना आता है, और उस बेसिस के ऊपर अब वो क्रेडिट प्रोफाइलिंग अपना कर रहे हैं. तो अगेन कोई भी एक बिग बैंक के तौर पर चेंज नहीं होगा, but I think there's enough data out there. For example, telecom is one aspect. For example, Kareem, right, or ride-sharing entities for that matter is one aspect. So there are a number of. अच्छा मजे की बात है जो मुझे समझ आए, big data वगैरह सब बेकार बातें. Basically basic data को उठाकर आप कहते हैं कि यार इस बेसिस के ऊपर मेरा क्या ख्याल है कि ये बंदा किस पीयर ग्रुप में शामिल है, उनके क्या जनाब वो स्पेंडिंग हैबिट, क्रेडिट प्रोफाइल वगैरह होगा, उस बेसिस पर आप सॉर्ट करते हैं. Sky's the limit. So now questions are being populated on the app as well. So I'll just repeat. You can visit slide.do and event code is #CFA. I'll just ask a few questions. The first question is about the role of existing banks, right? So regulator we have seen has. Thank you so much. Please. Boring adoption. Adoption तो boring है, but it's very slow. All the buzzwords are there. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. एग्जैक्टली जो नई चीज़ आएगी वो अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स से आएगी. फॉर एग्जांपल करीम सुपर इज गेटिंग वेरी पॉपुलर इन द रीजन. Just one last thing, there is one code on the tables and give us your feedback. We will appreciate it. And you can also go on to Slido and give us your feedback.